Hi, and welcome to Art Alab, a podcast dedicated to conversations on visual culture with me, Kamayani. On today's episode, we have with us Prabhakar Pazpute, one of India's most prolific young artists, widely exhibited and internationally acclaimed. He is one of the youngest artists ever to have a solo exhibition at the National Gallery of Modern Art. Most recently, he was declared one of the winners of the Artist Mundi Prize this year, an award aimed at, and I'm quoting them, providing unique opportunities for individuals and local communities to engage creatively with the urgent issues of our time in ways which resonate with us all. This latest work is currently on view at the National Museum, Cardiff. Hailing from the coalfields of Chandrapur district, eastern Maharashtra, Prabhakar is known for his painterly use of charcoal as a representative of coal. In Hindi, the word koila is used to mean both, in large-scale and site-specific formats like murals and animation. But there's been a change in his practice over the past couple years, with more oil works, colours, and the form that he actually specialised in at art school, sculpture. His work is imbued with the expressive, ethical, and political imaginary of the mining community he hails from, interrogating the ecological and socio-economic correlations and consequences of violent interventions like open-cast mining. I urge listeners to read about open-cast mining in India, the problematic reasons it has become rampant, and its devastating effects on the environment and living organisms. Having worked with mining communities across the world, from Brazil to Poland, Prabhakar's use of fossil fuels from different parts of the earth gestures towards a planetary engagement, while more attenuated in bringing geological material into the white cube. The geoaesthetic aspects of Prabhakar's work can be related to the land art canon exemplified by artists like Robert Smithson. Prabhakar is involved with the Chandrapur-based collective of artists and mine and agricultural workers, Saptarang, whose poetry has appeared in his shows. So I first met Prabhakar a decade ago at his debut solo, Canary in a Coal Mine, at the Clark House Initiative in Colaba, Mumbai. To fill listeners in, Clark House is a curatorial initiative that was started by Sumesh Sharma and Zasha Kola in 2010. Prabhakar is now based in Pune, which is where he spoke to Art Alab from. In fact, when I reached out to him, he remembered that one meeting from 10 years ago, which shows that he has a pretty incredible memory. In fact, memory is something that we talk about in this episode, human and terrestrial. Now let me introduce you to him. Prabhakar Pazpute works in an array of mediums and materials, including drawing, light, stop-motion animation, sound, and sculptural forms. His use of charcoal has a direct connection to his subject matter and familial roots, coal mines and coal miners. He received his bachelor's in fine arts in sculpture from Indira Kala Sangeet University, Khairagarh, Chhattisgarh, and his MFA from Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, or MSU, as we know. He has exhibited extensively with solo shows at the Clark House Initiative, Mumbai, Experimenter, Kolkata, National Gallery of Modern Art, Mumbai, Asilo Via Porpora, Milan, and Glasgow School of Art. He has also participated in group exhibitions at Van Ab Museum, Eindhoven, Cadist Art Foundation, Paris, IFA, Stuttgart and Berlin, DRAF, London, MACBA, Barcelona, Parasite, Hong Kong, Asia Cultural Centre, Gwangju, STUK, Leuven, AV Festival, Newcastle, and was part of the 31st Sao Paulo Biennial, the 5th Fukuoka Asian Art Triennial, the 14th Istanbul Biennial, the 8th Asia Pacific Triennial Brisbane, and the Dhaka Art Summit, the 2nd Yinchuan Biennale, and the 4th Kochi Muziris Biennale. Prabhakar Pazpute is represented by Experimenter, Kolkata. On today's episode, we discuss the highlights of his decade-long practice, including recent shifts in it, some of them a result of the coronavirus pandemic, his formative years as a young artist at the Clark House Collective, how the aesthetic mode he has adopted captures the political and ecological aspects of mining in the era of extractive capitalism that's couched in a developmentalist rhetoric.
We also talk about the frequent comparisons with William Kentridge, how contemporary artists grapple with history under antagonistic regimes, and the value of artistic practice that is collective. वेलकम टू द शो प्रभाकर। आर्ट लैब पर आने के लिए आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद कामायनी, इट्स अ प्लेजर। मैं खुश हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे आपके साथ बात करने की। Before we continue, I'd like to let our listeners know how to access the material accompanying our conversation. To view the images and other material being referenced and discussed in the episode, click on the link in the show notes to access the guide. You can also find the link to the guide for each episode in our Instagram captions and tweets. The following interview has been conducted in Hindi. Listeners can access a complete time-stamped English language transcript by clicking on the link in the episode show notes. सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आर्टिस्ट मंडी प्राइज के लिए। Congratulations. थैंक यू। मुझे लगा हम वहीं से शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो आपका सबसे नया काम है। जो आर्टिस्ट मंडी प्राइज के अंतर्गत आपकी एग्जीबिशन है नेशनल म्यूजियम कार्डिफ में, वो पहली नजर में आपके पुराने काम से काफी अलग लगती है। ये काम बहुत रंगीन है। हाँ। जबकि आपने इससे पहले ज्यादातर मोनोक्रोमैटिक यानी ब्लैक एंड व्हाइट वर्क्स बनाए हैं, खास करके क्योंकि आपका माध्यम कोयला रहा है। तो इतना सब रंग बिरंगा काम आपके नाम से जुड़ा हुआ देखने पर मैं थोड़ी आश्चर्यचकित जरूर हुई। साथ ही कुछ काम का जो स्केल है वो छोटा है और आप अपने म्यूरल्स और लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में आपके काम का रुख कुछ बदला भी है। एक्सपेरिमेंटल में जो आपकी पिछली एग्जीबिशन थी बीनीथ द पैल्पेबल, उसमें भी ये थोड़ा झलका था ये बदलाव, और वहां से कुछ काम शायद कार्डिफ में मौजूद है। तो इस बदलाव के बारे में हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्हें थोड़ा बताएं। मतलब सबसे पहले कहूँगा कि ये जो बदलाव जो दिख रहा है अभी, मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस से आया हुआ है, जहाँ मतलब जिसके कई सारे चीज़ें जुड़ी हुई है उसमें। और कलर्स का जो ये है, क्योंकि शुरू के मेरे कई काम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, चारकोल और एक प्रोसेस में थे। एक तरह से इफेमेरल क्वालिटी भी थी उन कामों में, और एक स्टैग्नेंट ऐसा एक फील था, मतलब इंस्टेंट किया हुआ या फिर। बट स्लोली जब मैं आई थिंक ये 2014 की बात है, अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूं तो मेरे कामों में, तो कलर्स की बात 2014 में जब मैं ब्राजील के साओ paulo बिएनाले के लिए मेरा जो सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम सबसे पहले मुझे मुझे लगता है कि कलर्स का इंस्पिरेशन या फिर कलर्स का यूज़ मेरे कामों में हुआ था। जैसे कि साओ paulo बिएनाले के वर्क्स में क्योंकि वो रिसर्च भी उस तरह का था जो कलरफुल लाइफ थी, क्योंकि ब्राज़ील में एक अलग-सा एक एटमॉस्फेयर मैंने नोटिस किया था, व्हिच वाज़ कि वो कोल माइनिंग के बारे में नहीं था। तो कई सारी चीज़ें है ना, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ट्रैवल के थ्रू और जितने सारे रिसर्च विज़िट, मतलब आर्टिस्ट रिसर्च विज़िट जो भी किए मैंने, या फिर आर्टिस्टिक जो भी रिसर्च किया, उसके हिसाब से देखा गया कि शुरू में एक कोल माइनिंग से चालू हुआ एक स्टोरी या फिर एक वर्क प्रोड्यूस और या फिर प्रोसेस हुआ था। बट आगे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कई सारे एलिमेंट्स जो हैं जो माइनिंग से रिलेटेड है, बट काफ़ी जैसे गोल्ड माइनिंग का एग्ज़ाम्पल लिया जाए, या फिर सॉल्ट माइनिंग का एग्ज़ाम्पल लिया जाए, या फिर आयरन माइनिंग का एग्ज़ाम्पल, या कॉपर माइनिंग का एग्ज़ाम्पल लिया जाए, तो कई सारे कलर्स और कलरफुल चीज़ें मैंने नोटिस की। बट वो बैक इन द माइंड मेरे दिमाग में थी। तो 2014 में थोड़ा-सा एक कलर का एक आया था, उसके बाद 15-16 में थोड़ा-थोड़ा मतलब कलर्स आने लगे। और मेरे कलर्स भी काफ़ी स्पेसिफिक थे। मतलब मेरे काम के जो कलर्स आप नोटिस करेंगे, ये एकदम कलरफुल भी नहीं है, बट अभी रिसेंटली काफ़ी आपने जो नोटिस किया वो सही है कि कई सारे कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी काम में। बट इनिशियली बहुत स्पेसिफिक थे, जैसे ब्लू कलर था। ब्लू कलर एक सिंबल या फिर पॉइज़नस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको रिलेटेड मैंने किया था। जैसे येलो कलर एक कहीं न कहीं एक होप दिखा रहा है, क्योंकि लाइट्स का भी यूज़ होता था अंडरग्राउंड माइनिंग्स में, तो येलो। और ऐसे कई सारे कलर्स, ब्राउन कलर्स भी है जो सॉइल का, और सॉइल भी यूज़ किया है मैंने। कई बार मैं एक्रिलिक कलर्स यूज़ करता हूँ। तो कलर्स का एक मुझे लगता है कई तरह से एक रिलेशन रहा है मेरे काम में।
बट बैक इन द माइंड वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया था मैं। तो चारकोल के साथ ऐसे होता था कि मुझे इंस्टेंट करना है। तो उसने छोटे टाइम पीरियड में आप इंस्टेंट एक इम्पैक्ट देने वाला अगर काम करना है या फिर एक्सप्रेसिव करना है, तो मेरा कमांड जो है चारकोल के ऊपर काफ़ी अच्छा था। हुँ, हुँ, तो उस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया लार्ज स्केल वर्क्स और वो ईज़ी भी होते थे मेरे लिए क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि प्री प्लान नहीं होता था काम। हुँ, जैसे अगर साओ पाउलो का ही एग्ज़ाम्पल लिया जाए या फिर हुँ, इस्तांबुल बिएनाले का एग्ज़ाम्पल लिया जाए या हुँ, फिर अ, यहाँ का ब्रिस्बेन में एपीटी एशिया पैसिफिक ट्रिएनाले में जो किया था मैंने, तो कई सारी चीज़ें हुँ, प्लान नहीं थी। तो क्या होता था कि वहाँ जाके कई बार वो एक टाइम मिलता था मुझे, एक एक्सपीरियंस मिलता था वहाँ जाने के बाद रिसर्च करने का या फिर बात करने का। और जो आपने पूछा कि छोटे कामों का भी ज़िक्र हुँ, किया था। कई सारे जो काम हैं मेरे, वो इफ़ेमेरल थे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जिए हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर के लिए वो रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था, वो प्रोसेस में मेरा स्टूडियो भी उस टाइम कोई स्टेबल स्टूडियो नहीं था, कोई एक जगह पे नहीं था। हम मुंबई में थे तब और ऐसा कुछ स्पेस मैंने क्रिएट भी नहीं किया था स्टूडियो जैसा। तो क्या होता था कि जब भी मैं ट्रैवल करता था अलग-अलग जगहों पे, तो अलग-अलग जगह पे वो मूवेबल एक स्टूडियो होता था मेरा और वो कंफर्टेबल भी था मेरे लिए कई बार। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे सारे वर्क्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे और हो गए हैं, कई सारे बड़े-बड़े लार्ज स्केल के वर्क्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो एक तरह का एक डिटैचमेंट भी था, अगर इमोशनली मैं बोलना चाहूँ तो कई बार मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं माँगा किसी को कि मुझे जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं काम मेरा, तो उसका फ़ोटो भेजिए। कई बार मैंने किसी को नहीं माँगा। तो मुझे लगता है कि वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था मेरे काम का। अगर 2018 के बाद के अगर काम देखे जाए मेरे, तो उसमें कुछ-कुछ काम हैं जो एक्सिस्ट करते हैं आज। जो कि मैं इस बारे में सोच रहा था कि व्हाट इफ आई कैन नॉट ट्रैवल मतलब मैं अगर ट्रैवल नहीं कर पाऊँ कभी फ्यूचर में तो क्या होगा? किस तरह से और वैसा ही हुआ 2019 मतलब 20 के बाद ऐसा हुआ है कि अभी मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा काम ट्रैवल कर रहा है। तो आई थिंक पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि ट्रैवल्स भी रिस्ट्रिक्शंस हुए जैसे पैंडेमिक के बाद हुँ, कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। उस तरह से मैं स्टूडियो भी नहीं जा पा रहा था उस दौरान और ना ट्रैवल कर हुँ, पा रहा था किसी और जगह पे जाके काम करने के लिए। तो मैंने अपने घर में ही छोटा-सा एक स्पेस बनाया था और छोटे-छोटे काम शुरू किए थे मैंने, एकदम छोटे-छोटे ए4 साइज़ पेपर पे। तो पहली बार मैंने ऑयल कलर्स यूज़ किए। हुँ, मतलब इसके पहले मैं कहीं कभी ऑयल कलर्स यूज़ नहीं किए थे। तो ऑयल कलर्स यूज़ करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। कई सालों तक एक स्पेसिफिक मीडियम यूज़ करने के बाद मुझे भी हुँ, ऐसी एक बोरियत सी हो गई थी। मतलब वो हुँ, चारकोल एक मीडियम से भी। क्योंकि मैं कई बार अपने काम के बारे में क्रिटिकली सोच भी रखता हूँ। तो उस तरह से मैंने ऑयल कलर्स पहली बार यूज़ करना चालू किया और मुझे लगा कि एक मीडियम की एक अलग क्वालिटी है, अलग इम्पैक्ट है इस तो आई थिंक इस तो एक मिनरल से सॉरी एक फॉसिल फ्यूल यानी कोल जिसे आप चारकोल के ज़रिए सिंबलाइज़ करते हैं, उससे दूसरे फॉसिल फ्यूल यानी तेल की तरफ आपने प्रैक्टिस मोड़ी ऐसे कह सकते हैं। हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर देखा जाए, तो उस तरह से हम चीज़ें जोड़ सकते हैं। मतलब कि जैसे चारकोल का भी एक मैं कॉलेज में जब यूज़ करता था, तो उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन जो है, जब मैं कोल माइनिंग के बारे में काम करने लगा, तब डायरेक्ट उसका इम्प्रेशन या फिर कनेक्शन जुड़ा। तो उस हिसाब से ऑयल का भी मुझे लगता है कहीं न कहीं उसका कनेक्शन हम मतलब कॉन्सेप्चुअली जुड़ ही सकता है उसका। बट मेरे लिए वो एज़ एन मीडियम चारकोल को मैं एक पाउडर की तरह या एक इस तरह से नहीं यूज़ करता अभी। मैं कंप्लीटली उसको पानी के साथ वाटर कलर की तरह इवन वॉल्स का जो है, जैसे गैलरी वॉल्स होती है, तो कई बार जैसे एक्सपेरिमेंटर में भी आपने नोटिस किया सोलो एग्ज़िबिशन में लास्ट ईयर जी। के जिसमें मेरा मुझे एक अलग तरह का स्पेस क्रिएट करना शुरू से पसंद है। तो जो गैलरी स्पेस हो कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म करना है, साइट स्पेसिफिक एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, काम को जस्टिफ़ाई भी आई थिंक जस्टिस मिलता है उस तरह से अगर देखा जाए तो। बट मटेरियल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है एक ही चीज़ मैं शायद रिपीट नहीं कर सकता। मैंने की भी है पहले मतलब कई सारे इमेजेस रिपिटेशन हुए हैं, कई सारे प्रोसेस भी रिपीट हुई है।
बट मैंने जैसे कहा कि मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचता हूँ। मुझे लगता है कि वो सोच रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से रिवर्स सोचते हैं अपने प्रोसेस में और आपके काम के बारे में। वो एक थॉट आया था मेरे मन में, तो उसके बाद से जो प्रोसेस किया मैंने अपना कुछ-कुछ काम, तो प्लाईवुड कटआउट्स यूज़ करना स्टार्ट किया था। वो ये डेलिबरेटली नहीं था कि मैं आज से ब चलो मैं कल से अभी प्लाईवुड कटा ऐसा नहीं था, बट दैट हुँ, थॉट वाज़ देयर, यू नो, कि वो 2000 14-15 से हुँ, एनजीएमए के बाद ही मुझे महसूस हुआ, क्योंकि फर्स्ट कटआउट जो मैंने किया था वो एनजीएमए में हुँ, यूज़ किया था मैंने। अगर आपने जी, नोटिस किया होगा पूरे इसमें वहाँ पे 3 जी, जी। कटआउट्स थे बस, और उसके साथ वॉल ड्राइंग्स थे। तो मैंने हमेशा से वो प्ले करना अच्छा लगता था वॉल ड्राइंग्स के साथ। क्ले अप्लाई किया, हुँ, प्लाईवुड कटआउट, कोई कहीं पे कुछ दूसरा एलिमेंट्स ऐड किया। तो इस बार क्या हुआ था कि मैंने इंडिविजुअली कटआउट्स करना चालू किया था, जो कोची हुँ, बिएनाले में मैंने दिखाया, जहाँ पे वॉल एक्सटेंशन जी, जी। कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक कुछ-कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने एक्सेप्ट किए, और वो उस तरह से मैंने अपने काम को मोड़ने की हुँ, कोशिश भी की। क्योंकि वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि चारकोल मुझे अलग तरह से यूज़ करने का मतलब आइडिया आ रहा था, और मुझे करना भी था। क्योंकि वो मैं बोर हो गया था, हुँ, वो एक ही चीज़ कर कर के, क्योंकि आर्टिस्टिकली आप, मुझे लगता है कि एक चीज़ को बार-बार रिपीट जब करते हैं, हुँ, कोई भी मीडियम को भी, तो वो एक एक टाइम के बाद लगता है कि बस हुँ। हो गया बस। और वो फीलिंग लिटरली मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा मोड था कि मुझे वो चारकोल के पेंसिल का आवाज़ भी पसंद नहीं था। और आज भी मतलब उस आई थिंक मैं पिछले 2 साल से 3 साल से आई थिंक चारकोल एक अलग ही तरह से यूज़ कर रहा हूँ। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात रही है प्रोसेस की, और उसके बाद से कई सारी चीज़ें भी बदली है, पर्सनल लाइफ़ हुँ, भी काफ़ी बदल गया, रूमी हुँ, होने के बाद पर्सनल लाइफ़ भी कई सारा बिल्कुल। बदल गया, और ट्रैवल करना उतना पॉसिबल नहीं कि हर महीने आप छोटे बच्चे के चले जाओ, साथ। आप बैचलर्स हाँ, नहीं रहे। हाँ, तो मतलब कई सारी चीज़ें छोटी-छोटी, छोटी-छोटी जो मेरे काम को कहीं न कहीं इंस्पायर करती रही है, और मैं कॉन्सेप्चुअली भी हुँ, बहुत डीप डाउन सोचता हूँ इन सबके बारे में। जैसे प्लाईवुड कटआउट्स भी कर रहा हूँ, तो क्यों है वो और किस लिए, और और एक चीज़ मतलब बताना चाहूँगा कि मेरा हर हर बार काम इनकम्प्लीट होता है। जब भी आप प्लाईवुड कटआउट भी लेके गए आप, अगर मैंने ड्राइंग एक्सटेंशन किया वॉल पे, तो वो मेरे बिना पूरा होता नहीं है कई बार। अगर वो कई बार अगर सॉरी, अगर किसी हुँ, एक प्लेस पे डिस्प्ले हुआ है, दूसरे प्लेस पे अगर उसको ट्रैवल करके ये करना है, तो वो कई बार मुश्किल हो जाता है, वो फिर से एक्सटेंड करना। हुँ, तो वो चीज़ भी मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी। तो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे रिसेंटली आर्टिस्ट मंडी में क्या हुआ था कि पहले प्लान था कि मैं वहाँ जाके पूरा काम हुँ, करूँगा। बट वहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बाद चीज़ें बदल गई, और यहाँ से पूरा मेरा काम क्रिएट करना पड़ा, और यहाँ से कुछ कैनवास वर्क्स हुँ, भेजे मैंने, और वहाँ पे जो विल रॉबर्ट्स करके लोकल आर्टिस्ट हैं वहाँ कार्डिफ के, उनके साथ एंगेज प्रो कोलैबोरेट करके हमने वो पूरा काम वॉल पे अच्छा। एक्सटेंड किया। तो एक 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 ये नई मेथड है, मतलब नई तरह का काम है जो मैंने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मेरा काम ये करे। तो मैं शुरू से अकेले हाँ, ही जितना भी काम किया है वो अकेले ही करता था, और जब बॉम्बे में या फिर इंडिया में करता हूँ, तो कोई ना कोई फ्रेंड साथ में जी, रहते हैं, या फिर साथ में कोई ना कोई होता है जो एक जी। हेल्प करता है मुझे बड़े लेवल पे। तो अभी के दौर के काम के बारे में इस तरह से हुँ। चल रहा है। मुझे लगा एक्चुअली मैं बीनीथ द पैल्पेबल के बारे में सोच रही थी, जो आप अभी प्लाईवुड की बात कर रहे थे, और फिर मैं इमेजेस भी देख रही थी समझने के लिए, वो जो आप प्रक्रिया समझा रहे थे। मैंने पहली बार इस पैमाने पे आपके इतने सारे स्कल्पचर्स एक साथ देखे हैं, और काफ़ी आयरॉनिक है, मज़े की बात है ना कि आपकी हाँ, प्राइमरी ट्रेनिंग, आपका जो मुख्य प्रशिक्षण रहा है, वो एज़ अ स्कल्पचर रहा है। लेकिन आपने इतने साल स्कल्पचर के अलावा अलग रूप के उपयोग किए हैं, और बीनीथ द पैल्पेबल वाले स्कल्पचर्स में आपने
अलग-अलग मटेरियल भी हाँ, इस्तेमाल किए, जैसे पत्थर का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, गोबर और ऐसे पदार्थ। मैं सोच रही थी हाँ, वो एक शायद आपके स्कल्प्टर होने की वजह से डायमेंशनैलिटी या परिमाण का एहसास मिलता है इन कामों में। आपके म्यूरल्स और एनिमेशन में हमेशा से रहा है एक स्कल्पचरल रूप, उसपे साफ समझ आता है। तो जैसे आपने कहा, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए वो कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग्स, वो जो वैचारिक नींव है काम की, उसको रिविजिट करना ये बहुत अहम है। और आई थिंक वही जो अ, आपके स्तर के आर्टिस्ट जो इतने सफल हैं और दुनिया भर में इतनी जगहों में एग्जिबिट कर चुके हैं आप, एक पॉइंट आता भी होगा जब आप हाँ, चट जाते होंगे ना, मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि आपको राइट, सोचना राइट। है इन सब चीज़ों के बारे में, और अगर आप वही सेम ही माध्यम का इस्तेमाल एक ही ढंग से करते रहेंगे, तो जैसे कि आपने खुद ही कहा, वो एक गिमिक या बनावटी भी लग सकता है। तो इसलिए वो सुलझाना राइट। ज़रूरी है एक ख़याली लेवल पे। अम, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपने पैंडेमिक के बारे में बात की, क्योंकि आपका शो बीनीथ द पैल्पेबल तो 2020 की शुरुआत में ही खुल गया था, जब महामारी नहीं आई थी और कागज़ के जो वर्क्स हैं और छोटे स्केल का काम ऑलरेडी मौजूद था उसमें। अ, शायद वो जो अब आर्टिस्ट मंडी वाली एग्जीबिशन है कार्डिफ में, उसमें आपने उन कामों को एक अलग पहचान दी है। लेकिन मुझे वो थोड़ा प्रेशिएंट, थोड़ा भविष्यदर्शी भी लगा। अ, आप ऑलरेडी उस सिलसिले में थे अपनी पूरी प्रक्रिया को रीथिंक करने की। जो आपने जो आप रंगों की बात कर रहे हैं, आपके काम को तो मैं कई सालों से देख रही हूँ, और मैं इन पिछले 1-2 साल के काम के कलर्स के सिवा उन मोटिव्स या प्रतीकों के बारे में भी सोच रही थी, जो आपके काम में कई दफ़े दिखे हैं, एक सार्थकता के साथ। जैसे गिद्ध का प्रतीक, पहले आप उल्लू कितने बनाते थे अपने काम में, वो मतलब झलकते थे यहाँ-वहाँ। उनका अपना एक मायना था, और अब ये इन कामों में, नए कामों में जो गिद्ध है, और जो रंगों के बारे में बात कर रहे हैं आप, पहले भी वो एक्रिलिक्स आपके काम में थे, लेकिन उनका फैलाव और क्वालिटी काफ़ी अलग थी। मैं मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं म्यूज़ियम मेनाजरीज़ नाम के काम के बारे में सोच रही हूँ, जो कि कार्डिफ में डिस्प्लेड है। तो ये जो श्रृंखला है, जो सीक्वेंस है, वो पेपर पे स्मॉल स्केल पेंटिंग्स की हाँ, है ना? पेंटिंग से ऑयल ऑन पेपर है वो। अच्छा, ऑयल ऑन पेपर, जी। हाँ, हाँ, जो आप भी अभी बात कर रहे थे, तो उसके काफ़ी सररियलिस्टिक पहलू लगे, और कलर पैलेट और रंगों का जो संतुलन और तीव्रता, इंटेंसिटी है, वो मुझे काफ़ी अलग लगा पहले के काम से। सब्जेक्ट मैटर जो है, जिसकी ब्लैक एंड व्हाइट झलक पहले से आपके काम में रही हुँ, है, हुँ। आपके शुरू के शोज़ कैनरी इन अ कोल माइन और लैंड ईटर्स में भी थे कई चिन्ह और चित्र। अब ये रंग-बिरंगे वीराने किस्म के लैंडस्केप्स, और उनमें घूमते अजीब, आधे मशीन, आधे मनुष्य से प्राणी, उसके हिसाब से भी वो सररियलिज़्म का एक भाव आता है, एक सेंस मिलता है। और देखा जाए तो चाहे साल्वादोर दाली हैं, चाहे ईव टोंग हैं, चाहे रेमेडियोस वारो हैं, उनके काम की बहुत झलक लगी मुझे, ऐसा उनका काम अ, याद आया आप इन इन वर्क्स को देख के। क्या आपके इस नए काम का सररियलिज़्म के साथ ताल्लुक जोड़ना जायज़ है? हाँ, अभी इसके बारे में अगर सररियलिज़्म या फिर सररियलिज़्म एस्पेक्ट के अगर मेरे काम में बात की जाए तो आई थिंक वो है शुरू से ही उसका एक इम्पैक्ट है मेरे काम में। और बट अभी मैं उसको एक अलग तरह से आई थिंक देखता हूँ कि वो किस तरह का वो सररियलिज़्म है या कोई और तरह का कुछ एस्पेक्ट हम या फिर कोई किसी और तरह का एंगेजमेंट हम बोल सकते हैं उसको। तो आई थिंक पोएट्री और जो लिटरेचर का एक प्रभाव रहा है मेरे ऊपर या फिर उस शुरू से ही क्योंकि जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तब कई सारे मराठी पोएट्स और राइटर्स को मतलब मैं रीड करता था। दिलीप चित्रे, महेश एलकुंचवार और और एक इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें मतलब नोटिस की थी कवि ग्रेस की जो उल्लू की बात हमने की थी।
तो उल्लू का उनकी एक कविता है जो जिसके बारे में एक है ना, एक इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक पोएम है जो "ती गेली तेव्हा रिमझिम" ऐसा एक मराठी में पोएम है जो कि काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट के बारे में। तो मैं सबसे पहले बड़ौदा में उल्लू का जो ये है इमेज, बड़ौदा में यूज़ किया था। और जो डिस्टॉर्शन है बॉडीज़ का या फिर फिगर्स का मेरे काम में, वो काफ़ी बाद आया है। मतलब जैसे जब शैडो प्रोजेक्शंस करना चालू किया मैंने, स्टॉप मोशन एनिमेशंस करना चालू किया, तो वहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगी कि यहाँ पे मतलब देयर इज़ दिस जक्स्टापोज़ कर सकते हैं आप चीज़ें। आप मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो जो एनिमेशन की प्रोसेस मैंने यूज़ की थी, वो डिस्ट्रक्टिव थी। जो आप इरेज़ कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, इरेज़ कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं। तो और स्कल्पचर में मुझे कई सारी चीज़ें मतलब डिफ़िकल्ट लगती थी और लिमिटेड लगती थी। तो मैंने जो जिस तरह से एक्सप्लोर किया था, तो मैं सीधा-सीधा वो कवि ग्रेस की जो पोएम है, वो यूज़ की थी अपने काम के लिए। तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट हुआ और मुझे लगा कि मैं एक पोएटिक लैंग्वेज को भी अपने काम में डेवलप कर सकता हूँ। और उस तरह से कई सारे मेटाफर्स यूज़ किए हैं मैंने। और कई सारे एलिमेंट्स या सिम्बल्स यूज़ किए हैं, जो आई थिंक वो कहीं न कहीं उसका रिज़ेम्बलेंस सररियलिज़्म के साथ जोड़ सकते हैं हम या फिर जुड़ सकता है। और धीरे-धीरे क्या हुआ है कि अलग-अलग तरह के मैंने कैरेक्टर्स डेवलप करना चालू किए। पिछले कई सालों में अलग-अलग जो चीज़ें आप आर्टिस्ट मंडी में नोटिस कर रहे हैं, एक बैरन लैंड पे या फिर एक अबैंडन्ड लैंडस्केप में एक कैरेक्टर है या फिर एक कुछ एलिमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आई थिंक वो रिसर्च के आर्टिस्टिक जो रिसर्च हुआ है मेरा माइनिंग का और जहाँ-जहाँ, जो-जो चीज़ें देखी, जैसे लैंप है, कोल माइनर्स का लैंप है, कोल माइनर्स के शूज़ है और उनके हेलमेट्स हैं, हेडलैम्प्स हैं और जो मशीन है, ड्रैग लाइन मशीन है, एक्सकैवेटर्स है। तो और इवन डोंकी मतलब जो कि टर्की में जो सॉल्ट माइनिंग में मैंने देखा था, जो नेचुरली प्रिज़र्व्ड डोंकी था, 200 साल पुराना। तो क्या हुआ है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं ना, मतलब एक अलग ही ये होता है, जब आर्टिस्टिकली आप जब वो रिसर्च कर लेते हैं और अपने बैक इन द स्टूडियो या फिर घर पे जब आते हैं और बातें करते हैं उसके बारे में, तो आप अपने आप उस चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं कि उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो मेरे काम में मैं कई बार वो मीनिंग्स जोड़ने की भी कोशिश करता हूँ। कि और जैसे कलर्स की जो मीनिंग्स की एक मैंने बात बताई थी कि क्यों वो कलर्स है, किस लिए कलर्स है। उसी तरह से जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, जैसे मैमथ नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि एक एलिफेंट बोल सकते हैं, बट मैं उस एलिफेंट को यहाँ पे जक्स्टापोज़ करके कंप्लीटली ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो एलिफेंट एक जेसीबी बन जाता है या फिर जेसीबी एक्सकैवेटर मशीन हो जाती है। और उसके साथ-साथ मतलब जैसे कोल का जो एक एलिमेंट है, वो भी कई बार मैंने यूज़ किया है। तो अलग-अलग जगह का कोल है, बट अलग-अलग जगह के एनिमल्स के बोन है वो, है ना? तो उस तरह से मैंने चीज़ें जोड़ी और उसके बाद में जब जो कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, तो कुछ-कुछ कैरेक्टर्स जो रिवाइज़्ड हुए हैं, मतलब फिर से आए हैं, जैसे कैरेक्टर ऑफ द मैनेजर है। तो कैरेक्टर का जो जो एक्जिस्टेंस है, वो आई थिंक पावर के लिए मैंने यूज़ किया है। कई बार उसको रिपीट भी किया है, उसका डोमिनेंस जो है, वो कितने तरह से और कितने अलग-अलग तरह से वो एक्जिस्ट करता है, वो भी दिखाया है। और उसके साथ-साथ उसका जो यूज़ है, जिस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी जो रिसेंट जो क्लोज़ ऑब्जर्वर करके जो काम है आर्टिस्ट मंडी में, तो उसका एक अलग ही रूप मैंने एक मैनेजर की ही इमेज है, बट आप वो रिलेट नहीं कर पाएँगे। इस तरह से उसको ट्रांज़िशन किया है। वो एक ऐसा एक एक रॉड बोल सकते हैं या फिर एक डंडी बोल सकते हैं, लेके खड़ा है और उसका पावर बता रहा, बट उसका जो अगर स्टार नोटिस करेंगे आप, उसमें एक स्टार है जो कवर्ड है, बट इट इज़ इन्वर्टेड स्टार। जैसे जो शैतान बोलते हैं या फिर समझ गई। हाँ, इस्लाम में कहा जाता है कि हाँ, शैतान या फिर इब्लीस। इब्लिस, हाँ, हाँ। इब्लीस जो बोलते हैं, तो इब्लीस टाइप का वो कैरेक्टर है। हुँ। सो तो इब्लीस ये जो वर्ड है, मैंने बचपन में कई बार सुना है। तो मैंने कभी वो नोटिस नहीं किया, कभी वो रिलेट नहीं किया उस तरह से कि ये इब्लीस जैसा कर रहा है। तो इब्लीस जैसा मतलब क्या होता है? तो आज मैं जब वो चीज़ें रिलेट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंगली वो ट्रांज़िशन हुआ है, वो मैनेजर के इमेज का। तो आई थिंक जो सररियलिज़्म का
जो इम्पैक्ट और प्रभाव रहा है, इस तरह से आई थिंक पोएट्री और लिटरेचर के थ्रू हुआ ही है और साथ ही साथ जो आर्टिस्टिक रिसर्च हुआ है और कई सारे आर्टिस्ट का जो जो मैंने काम देखा है, तो आई थिंक उनके कहीं न कहीं इम्पैक्ट रहे हैं और इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे काम के लिए। हुँ, मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड भी थी ये जानने में कि जैसे जब हम रिसर्च या शोध की बात करते हैं और आपका काम काफ़ी रिसर्च पे आधारित है, इन सब जगहों में आप जहाँ ट्रैवल करते हैं, लोकल जो स्थानीय माइनिंग कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करते हैं, आप वो एक ताना-बाना बनाते हैं। आपके काम में भी दिखता है वो। अ, ये जो लिंक्स हैं, जो कड़ियाँ हैं, दुनिया भर में मेहनतकश कम्युनिटीज़ का, समाजों का आर्थिक और राजनैतिक शोषण होना, उनका वातावरण नष्ट किया जाना, ज़मीन से उनके ऐतिहासिक रिश्ते पर हमला कर प्राकृतिक संसाधनों का उनसे छीना जाना। आप इन सबको दर्शाते हैं अपने काम में। मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई ये जानने में कि आर्टिस्टिक रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च कोट अनकोट इनमें क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? आई थिंक उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो सकता है क्योंकि क्या बोल सकते हैं एक प्रोसेस है एकेडमिक रिसर्च का और आर्टिस्टिक रिसर्च का अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि एक इमीडिएट आप रिएक्ट नहीं कर सकते कई बार। आप आप प्रोसेस करते हो कई सारी चीज़ें। जैसे अगर मैं ब ब बताना चाहूँगा जैसे कोलंबिया का जो रिसर्च ट्रिप किया था या फिर ब्राज़ील का किया था या फिर इटली में कई सारे मार्बल माइनिंग का जो किया था, तो उसमें मैंने इमीडिएट ऐसा कुछ ये नहीं किया बनाया था मतलब कि ये है या फिर ये वो है। तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास वो रहेगा या फिर है। तो वो क्या होता है कि आर्टिस्टिक रिसर्च में हम कई बार चीज़ें पूरी तरह से नहीं बता पाएँगे क्योंकि विजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं। या फिर आप राइट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं। बट आर्टिस्टिक रिसर्च में एक अलग तरह का एंगेजमेंट होता है मुझे लगता है। जब आप कम्युनिटी के साथ बात करते हैं, जब आप कई बार मुझे एज़ एन आर्टिस्ट अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य होता है कि उसके बाद ना कि सिर्फ़ आर्ट बनाना या फिर किस तरह का मैं एंगेजमेंट और कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा से दिमाग में रही है मेरे कि किस तरह का मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं कि आर्टिस्टिक ऐसा रिसर्च कर किया और ये बनाया और उसके बाद खेल खत्म। तो मुझे लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म एक हिस्सा होता है आपका ये और आप उसको छोड़ नहीं सकते और कई बार मुझे ये क्वेश्चन किए जाते हैं कई सारे लोग पूछते भी हैं कि आप कब तक माइनिंग के बारे में बात करेंगे? या फिर आप कब तक माइनिंग के बारे में काम करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है अभी तक कि मैं कब तक जीऊँगा ये मुझे खुद पता नहीं। मुझे लगता है कि मुझे मेरे पास वजह है वो करने की। रिसर्च क्या करता है आपके काम को क्योंकि रिसर्च कई बार आपके काम को वो एक अलग तरह का मोड़ देता है। कि जैसे मुझे कई बार लगता है जो स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस होती है और रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस होती है, इसमें क्या अंतर होता है? मुझे लगता है कि जो एंगेजमेंट और जो इन्वॉल्वमेंट लेके जब आप काम करते हैं आउटसाइड ऑफ योर स्टूडियो, वो आप स्टूडियो में बैठ के फुल टाइम स्टूडियो में बैठ के आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कहीं न कहीं वो डिटैच हो जाता है या फिर वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती जो एंगेज्ड होके या फिर साथ में रह के काम करके, कलेक्टिवली भी अगर बोला जाए तो उस हिसाब से। ये एकेडमिक स्कॉलरशिप में भी पुराना और महत्वपूर्ण वाद-विवाद का मुद्दा रहा है और अब तक है। ये प्रश्न कि हम किस तरह लोगों के जीवन पर अध्ययन करते हैं, उनके साथ शामिल होके या फिर हो सकता है असमान दृष्टि से ही एक अनइक्वल गेज़ ही अ, उन पे डालते हैं, खुद को एकदम अलग रख के शायद, ऊपर रख के उन्हें देखते हैं। मेरा मानना है आर्ट में तरकीबें हैं जिनसे कि आप जहाँ काम करना चाहें, अध्ययन करना चाहें, उनके साथ में, बगल में, साइड पे रह के कर सकते हैं। ऊपर से नीचे वाली दृष्टिकोण के बजाय। तो आप साथ में रह के आई लेवल पे देख पा रहे होते हैं आई थिंक एज़ एन आर्टिस्ट वो एक संभावना रहती है। हाँ, आई थिंक उस तरह से कह सकते हैं क्योंकि कई बार वो अगर हमने दायरे बना के रखे तो हम उस चीज़ों को समझ भी नहीं पाएँगे और जो रिसर्च बोलते हैं आप जिस चीज़ को, हुँ, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च आप जब जाते हैं, वो आप चीज़ें इकट्ठा करते हैं, राइट?
आप वो नोटिस करते हैं चीज़ें कि ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ पे ये जो बदलाव और आपको वो करने के बाद एक आप चैन से नहीं बैठ सकते। जब आपको पता चलता है कि ये भाई ये जो चीज़ है ये बहुत ही गलत है या फिर ये सही नहीं हो रही है या फिर ये जो तरीका चल रहा है गवर्नमेंट का या फिर किसी भी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी हो या फिर इंसानों का भी मतलब जो ह्यूमन्स है, जो उनका भी देखा जाए तो कई सारे उथल-पुथल तो चल ही रहे हैं लाइफ में अभी भी। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वॉल्वमेंट है हमारा जो रिसर्च के साथ या फिर जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेस जो होती है, कई सारे आर्टिस्ट लोग आज इन्वॉल्व होके उस तरह से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरीका है आज के डेट में आर्ट को भी शामिल करना इस तरह से, ना कि जब एक स्पेसिफिक एक कोने में या फिर एक जगह पे किया जाए। क्योंकि वो आज ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप कहीं पे भी बैठ के कहीं किसी भी इंसान से जुड़ सकते हैं। तो आज ये दायरे हुँ। भी मिट चुके हैं, जो पहले जो फ़िज़िकल दायरे थे, आज डिजिटल कनेक्शंस हैं लोगों के। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आज कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो बट अभी आगे किस तरह से ये डेवलप होगा ये हमें भी नहीं पता है। हुँ। मुझे आपकी बातों से ये भी लगा कि जब हम आर्ट की नीतियों या स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचते हैं तो मैं कई बार अपने काम के बारे में ऐसा सोचती हूँ। जैसे मैं भी अलग-अलग जॉनर्स में, शैलियों में लिखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जर्नलिज़्म यानी पत्रकारिता की बात करें हम, तो वो एक तरह की सच्चाई को स्पष्ट करता है और कविता उदाहरण के तौर पे एक अलग किस्म की सच्चाई को स्पष्ट करती है और इनमें क्या फ़र्क है? मैं काफ़ी सोचती हूँ इस अंतर के बारे में। दोनों भाषा से ही बनते हैं, लेकिन इनकी रचनाएँ एकदम अलग भी होती हैं। हालाँकि दोनों का उद्देश्य कह सकते हैं कि एक किस्म की सच्चाई को लोगों के सामने लाना है। अम, आप जो पहले बात कर रहे थे कि आपके काम में भी पोएट्री, कविताओं का प्रभाव रहा है, आपके एग्ज़िबिशन्स में भी कई बार तो एक्सप्लिसिटली काफ़ी प्रत्यक्ष तरीके से दिखा है वो प्रभाव। जैसे कि अम, एनजीएमए में जो आपकी एग्ज़िबिशन थी नो इट वाज़न्ट द लोकस्ट क्लाउड जो कि चंद्रपुर में सप्तरंग कलेक्टिव के कवियों के लेख, उनकी भाषा भी आपके चित्रों के साथ वहाँ नुमाइश में थी। तो ये अलग-अलग रूप में जो सत्यता की अभिव्यक्ति होती है, जैसे मैंने कहा जैसे मैंने पत्रकारिता और कविता का उदाहरण दिया। तो ये मुझे जनरली काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लगता है, इसलिए भी मैंने आपसे रिसर्च के संदर्भ में भी थोड़ा अलग ढंग से पूछा ये। एनजीएमए वाले शो पे मैं थोड़ा और गौर करना चाहूँगी। आर्ट इंडिया मैगज़ीन में उस पर हाँ, लज्जा शाह का हाँ। रिव्यू वैसे तो बहुत प्रशंसात्मक था, लेकिन उन्होंने एक बात कही जिस पर उस वक़्त भी मैंने ध्यान दिया था। उन्होंने तुलना की आपके एनजीएमए शो की आपके सबसे पहले सोलो कैनरी इन अ कोल माइन से। तो रिव्यू में एक बात कही गई कि कैनरी इन अ कोल माइन का बहुत इमर्सिव बहुत मग्न कर देने वाला वातावरण था, जहाँ अंधेरे कमरे में जाके एक टॉर्च के ज़रिए देखना पड़ रहा था और मैंने खुद भी देखा था वो शो जब खुला था और शैडो प्ले का इस्तेमाल जो आपने किया था, उसका अनुभव भी कर पाना बहुत एटमॉस्फेरिक माहौल में होने जैसा था। अम एनजीएमए में क्योंकि वो काफ़ी साफ-सुथरा, सैनिटाइज़्ड, हाई मॉडर्निस्ट गैलरी स्पेस है, वहाँ आपकी इस खान या माइन की हकीकत को रिक्रिएट करने की फिर से रचित करने की शक्ति थोड़ी फीकी-सी पड़ गई या उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल अलग हो गया। अम और इस ये जब मैं ये पढ़ रही थी रिव्यू और सोच रही थी इस तुलना के बारे में तो मैं मेरे मन में सवाल आया कि जो द्वंद्व है कि एक तरफ आप ओपन कास्ट माइनिंग की जो शोषक सच्चाई है उसके सामाजिक राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, एंगेज करते हैं और प्रकृति और इंसान जैसे आपने इकोलॉजी की बात की पर उसके जो माइनिंग या इस तरीके के जो हस्तक्षेप होते हैं इंडस्ट्रियल इकोलॉजी पर उसके जो घातक असरात हैं उसका सामना करते हैं अपने काम में। दूसरी ओर हम सब जो एक कल्चर इंडस्ट्री में आर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो
पूरी तरीके से पूंजी से घिरे हुए हैं। स्पॉन्सर्स, कलेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आर्टिस्ट या राइटर्स को अवसर या प्रयोजन देती हैं, म्यूज़ियम्स जो हैं। हमारा काम पूरी तरह से पूंजीवाद के खेल में फँसा है। तो आप इस द्वंद को कैसे सँभालते हैं या समझते हैं अपनी प्रैक्टिस में? जैसे अभी इसके बारे में शुरू करते हैं ज एनजीएमए में, वहाँ पे एक प्रोसेस भी था मतलब जो कि मैंने पहले ज़िक्र किया था। एक तरह से वो बोरियत सी हो गई थी मुझे, मतलब चारकोल के मतलब वो डायरेक्ट नहीं था, वो ऑफ़ कोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। बट सब्जेक्ट वाइज़ भी अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो कैनरिन कोल माइन का जो इम्पैक्ट था तो ऑफ़ कोर्स वो तो लाइफ़ में फर्स्ट टाइम मैंने उस तरह से चारकोल ड्राइंग्स किए थे। मतलब और साइट स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे वहाँ पे, उस तरह का चीज़ वो एक अलग मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता 2 चीज़ को, कि वो दोनों एक अलग-अलग तरह के दोनों एग्ज़िबिशन्स हैं और बट एनजीएमए में जो एग्ज़िबिशन हुआ था उसका आई थिंक एक क्या बोल सकते हैं उसको डिपार्चर बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके बाद के काम अगर देखेंगे आप, तो मेरे लिए वहाँ तक जो लोकस क्लाउड था, वो तो क्लाउड बन चुका था और वो आ चुका था। तो वो इस तरह के अगर मैं पोएटिकली देखूँ, मेरे प्रोसेस के हिसाब से तो वो उसके बाद के जो काम हैं, वो काफ़ी अलग हैं। इमीडिएट काम मुझे याद आता है जो ब्रोकन वराह मैंने एमसीएटी मनीला में किया था, वो एकदम ही कलरफुल जो ये था। तो आई थिंक वो ट्रांज़िशन और वो इमेजरी और वो सारी चीज़ें आई थिंक एनजीएमए में बदलना चालू हुई थी। तो इसीलिए भी हो सकता है कि कई लोगों को वो ट्रांज़िशन या फिर वो बदलाव मतलब कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे या फिर उस तरह से चीज़ें कनेक्ट भी नहीं और लाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? कि जब आप एग्ज़िबिशन्स हुँ। ये करते हैं, जैसे कैथरीन कोलमैन में कंप्लीट डार्क था और यहाँ पे एकदम ही ऐसे खुला पड़ा है। जैसे आपने पॉलिटिक्स के बारे में बात भी की, तो मेरे काम में मैंने उस मतलब 2012 से लेके 16 तक इतने ज़्यादा बार मैंने वो चीज़ें बताई हैं काम में, कि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या फिर फार्मिंग का भी जो इश्यूज़ हो रहे हैं, फार्मर सुसाइड हो रहा है, तो ये कई बार मैंने बातें चीज़ें मतलब बताई थी काम में। तो आर्टिस्टिकली अगर एज़ एन और पर्सनल लेवल पे मैं जब अपने ये सब चीज़ों के बारे में जब रिलेट करता हूँ, तो मैं एक कि जैसे कलेक्टिव की बात भी की था हमने, तो मुझे उस टाइम तक रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें ऐसे ही नहीं बदलने वाली हैं और आपके आर्ट के थ्रू तो नहीं बदलने वाली है। आर्टिस्ट के ये कई सारे मतलब ज़िम्मेदारी भी होती लगती है मुझे कई बार कि आप किस तरह से आप चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं अपने काम में। और अगर आप स्पेसिफ़िकली आप कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करें, किसी लोगों के बारे में बात करें या फिर कोई भी इकोलॉजी के बारे में बात करें, तो आपकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है, आप उस चीज़ को एक इन्वॉल्व होके करें वो। एक तरीका बनाएँ अपना खुद का और लोगों के साथ इन्वॉल्व होके करें। तो उस तक जैसे 2016 के बाद जो एंगेजमेंट रहा है मेरा भी खुद का, तो मैं कल अलग-अलग लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? और उसके बाद जो मैंने जो रिसर्च किए थे, जो आर्टिस्टिक रिसर्च, उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र किया था कि ओपन पिट माइनिंग, जो ओपन पिट माइनिंग है, जो अबैंडन्ड माइनिंग है स्पेशली। अ, उस एग्ज़िबिशन में उरामिली प्रोजेक्ट ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो हमारे गाँव में जाके उन्होंने सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे और जो लैंडस्केप रिकॉर्ड किया था। तो मेरे जो क्वेश्चन्स मैंने जो एनजीएमए में भी रेज़ किए थे, वो अबैंडन्ड माइनिंग के बारे में थे। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा था कि ये तो ऐसे बोलने से बदलेगी ही नहीं या या फिर मतलब यूरोप में मैंने देखे हुए एग्ज़ाम्पल्स जो अबैंडन्ड माइनिंग को आप रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे माइनिंग जब खत्म हो जाती है, जब कोयला खत्म हो जाता है, इस गवर्नमेंट या कंपनी का जो ये फ़र्ज़ होता है या फिर ये कानूनी नियम है कि आप उस पूरे लैंड को सरफेस सॉइल के साथ रिस्टोर करें। ताकि वहाँ पे फिर से ज़मीन खेती-बाड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए पब्लिक एंगेजमेंट के लिए या पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये होता है, जो यूके में मैंने देखे हैं कई एग्ज़ाम्पल और यूरोप में भी देखे हैं। तो वो चीज़ें मुझे कई ज़्यादा परेशान करती थी। तो आई थिंक वो एंगेजमेंट के हिसाब से ही मैंने वो ये हुआ था, जो एनजीएमए का शो। और वहाँ पे एंड में ही है एक एंड एंड में जैसे सीक्वेंस बनाया था वो एनजीएमए का शो का, तो एंड में वहाँ पे स्टेडियम जैसा एक बना हुआ है। तो वहाँ पे उस तरह से मैंने चीज़ें जोड़ने की कोशिश की थी, जो फार्मिंग का ट्रांज़िशन होके माइनिंग में आ रहा है, माइनिंग से एक्सप्लॉइट हो रहा है, फिर से
एक साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी है लोगों का। तो रेजिस्टेंस जब मैंने नोटिस करना चालू किया 2016 में, 15-16 में, तो उसके बाद से आई थिंक चीज़ें मेरे लिए और बदलने लगी। और साथ ही साथ हमारे जो कलेक्टिव है सप्तरंग आपने जो मेंशन किया था, उनके साथ मिलके हमने एक कलेक्टिव फार्मिंग भी चालू किया था, एक ट्राई के लिए। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, एक अलग तरह का इन्वॉल्वमेंट है मेरा मेरे गाँव से और मेरे गाँव के लोगों से। एक अलग तरह का मैं एंगेजमेंट रखता हूँ और साथ ही साथ जब आर्टिस्टिकली जब यहाँ रह के या फिर अलग-अलग जगह पे जाके ये करता हूँ, तो मुझे ये नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उनके साथ शेयर करने को भी मिलता है कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे-ऐसे बदलाव हो सकते हैं। तो रिसेंटली अभी इसी साल की बात है जो हम कुछ प्रपोज़ करने वाले हैं, जो एक माइनिंग का एक छोटा-सा हिस्सा जो अबैंडन्ड है कंप्लीटली, उसको डब्ल्यूसीएल म्हणजे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हम प्रपोज़ करने वाले हैं इस साल या अगले साल कि वो रिस्टोर किया जाए लैंड या फिर वो ट्रायल किया जाए ट्रायल बेसिस पे। तो इस तरह से आई थिंक मैं अभी अभी के एंगेजमेंट और या फिर एनजीएमए के बाद के अगर कनेक्शन देखे जाए तो इस तरह से मैंने खुद को क्वेश्चंस करना चालू किया था। हुँ, मैं खुद भी आई थिंक हम सब कल्चर वर्कर्स बहुत इम्प्लिकेटेड फ़ील करते हैं, मिले हुए फ़ील करते हैं इन सब सवालों में। जिस अर्थव्यवस्था में हम श्रम कर रहे हैं, उसमें एथिकल एम्प्लॉयमेंट हुँ, तो हुँ। नहीं होगा, है ना? हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल। अम, राइट, चलिए इस विषय को एस्थेटिक्स की तरफ मोड़ते हैं ज़रा। उत्खनन यानी एक्सकवेशन के ज़रिए कोयला या तेल ज़मीन से निकलता है। माइनिंग भी उत्खनन की प्रजाति है और न सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है बल्कि जैसे हम आपके काम में दिखा देखते हैं ये धरती और उससे जुड़े हुए जीवों लोगों के शरीर का मुद्दा है। तो माइनिंग उत्खनन एक एस्थेटिक मोड कैसे है या एक रूप रचना के संदर्भ में कैसे हम समझ सकते हैं इसे। इसके बारे में जानने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। आप माइनिंग जैसे एक्सकवेशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जब आप उसको गैलरी स्पेस में कोयले को बाहर लाके ज़मीन से उस तरीके से पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और एक ऐसे तरीके से जो कि वो पहले कभी देखा नहीं गया है शायद। और कोयला वैसे देखा जाए तो कितना पुराना माध्यम है ना आर्ट हिस्ट्री में। आइस एज के टाइम पे लोग कोयले से बना रहे थे गुफाओं में अपने जानवर, है ना? हमारे हमारे पूर्वज। अ, मुझे बहुत अटपटा सा इतिहास लगता है कोयले का आर्ट के की दुनिया में। एक स्कॉलर हैं आना बिल्बाओ जिन्होंने कोलंबिया में कंटेम्प्रेरी आर्ट की एक प्रथा को उस देश के गोल्ड माइनिंग के इतिहास और समकालीन कंटेम्प्रेरी समस्याओं से जोड़ा है। उनका एक ऐसे है जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये जो काम है, जो कोलंबिया की गोल्ड माइनिंग से जुड़ा है, चाहे मटीरियल लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे, वो एस्थेटिक्स ऑफ एविडेंस भी है। एक प्रामाणिक रूप रचना, एक सबूत की तरह फंक्शन करने वाला एस्थेटिक्स। वो गोल्ड माइनिंग की बात करके इस ख्याल को विकसित करती हैं इस ऐसे में। तो ये विचार मुझे बहुत असरमंद लगा सोचने के लिए आपके काम के बारे में भी। आपके म्यूरल्स, एनिमेशन, कैरेक्टर्स, लैंडस्केप्स जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे इन सब के बारे में। एक किस्म का एविडेंस देते हैं, सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं क्या? जिस कोयले से आपका काम बनता है वो चंद्रपुर जैसी खानों से निकला, माइन किया गया है और गैलरी में लाके आप एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का जो कीमती चीज़ें निकाल के उनसे मुनाफा बनाने का शौक है, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे सबूत के बारे में सोचना आपके काम के संदर्भ में काफ़ी फ़ायदेमंद लगा। अगर ड्राइंग और इसकी बात की जाए कि चारकोल और कोल आई हुँ, थिंक ड्राइंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांज़िशन हुआ है पूरे हिस्ट्री में। जैसे हुँ, जो कि स्कल्पचर और कई सारे अदर मीडियम्स का नहीं हो पाया। जैसे आपने केव पेंटिंग्स का ज़िक्र किया कि केव हुँ, पेंटिंग्स में जिस तरह से कोल यूज़ किया है, तो कोल हैज़ बीन लाइक इट्स इट्स अ प्रोमिनेंट ये भी बोल सकते हैं मीडियम
कि जिस तरह से उसको ट्रांज़िट आप इज़िली वो कोल और चारकोल का एक कैरेक्टर ऐसा है कि आप किसी भी तरह से उसको घोल सकते हैं, मिल सकते हैं। और आपने जो एक्सकैवेशन के बारे में बात की, तो एक्सकैवेशन हर आर्टिस्ट या फिर हर इंसान अलग-अलग तरह से आई थिंक नोटिस कर सकते हैं। जैसे मैंने जिस तरह से नोटिस किया वो काफ़ी अलग है मेरे लिए। जो मेरे लिए वो टनल्स जो है, टनल्स या फिर ओपन पिट माइनिंग के जो एक्सकैवेशंस लेयर्स हैं, वो लेयर्स आई थिंक मेरे काम में कई ज़्यादा दिखते हैं। तो मैंने लेयर्स के साथ ही कलर्स का कॉम्बिनेशन भी किया है और एलिमेंट्स जो क्योंकि एक्सकैवेशन में कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक आई थिंक एक बोट मिली है, तो एक्सकैवेशन करते-करते माइनिंग का एक्सकैवेशन था। तो लास्ट ईयर ही आई थिंक 2020 में एक बोट मिली है, वो वाइकिंग्स की बोट है। तो लाइक ये आप एक्सकैवेट करते-करते इतनी सारी चीज़ें आपको मिल सकती है और इतनी सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबी हुई हैं। और उसके साथ-साथ ही हम क्या दबा रहे हैं, मतलब हम क्या और पुट कर रहे हैं ना, मतलब क्या-क्या चीज़ें हम हमारे जो कल्चर है, हमारा जो अभी का टाइम पीरियड है, क्या-क्या अभी जा रहा है उसके साथ। जो केमिकल्स रिएक्शंस है या फिर जो चीज़ें हमें डंप की जाती हैं, जो अगर वेस्टेज की बात की जाए, तो आज हम क्या डंप कर रहे हैं? तो हम तो एक्सकैवेट तो कर रहे हैं, जो रिसोर्स हमें चाहिए, बट हम डंप भी कर रहे हैं कई सारी चीज़ें। मैं जिस तरह से देखता हूँ अभी, तो एक बहुत ही ज़्यादा chaotic लगता है मुझे अभी का जो प्रोसेस है या फिर एक्सकैवेशन का। अबैंडन्ड तो है ही, बट उसके साथ-साथ कई ज़्यादा नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस जो प्रोसेस में ये लोग कर रहे हैं, आई थिंक वो कोई भी पावर कई और कई कई कोई भी कंट्री का आप उदाहरण ले लीजिए, इंडिया का ही नहीं, आप कोई भी लैटिन अमेरिकन या फिर साउथ ईस्ट एशियन या फिर चाइना या फिर रशिया, कहीं का भी एग्जांपल ले लीजिए, सेम मेथोडोलॉजी या फिर सेम मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं और सेम तरह का प्रोसेस हो रहा है। उत्खनन जैसे आप इस्तेमाल करते हो हुँ, हुँ। काम में, स्पेसिफिकली अगर आपकी प्रैक्टिस के बारे में हम बात करें, तो उसको हाँ, एज़ हाँ। एन एस्थेटिक मोड हाँ, कैसे हाँ, सोच हाँ। सकते हैं? अम, हाँ, ऐसे देश में काम बनाना जहाँ असलियत को हाँ। दफनाने की हाँ, हाँ। मशीनरी लगी पड़ी है ना? आपके मटेरियल्स और मेथड्स को एक अ, मेटाफोरिकल या अलंकारिक अर्थ दिया जा सकता है। एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म का ताल्लुक फासीवाद के साथ हम ऐसे स्थापित कर सकते हैं कि दोनों हमला करने की नीतियाँ हाँ, हैं। हाँ। एक हाँ, कुदरत और इंसानों के नाजुक गठबंधन पर और दूसरे इंसानों के बीच के रिश्तों पर। जब आर्ट की सतह पर ये गहरे पदार्थ लाके आप रखते हो, गैलरी जैसी एलीट जगह में कोयले की खान और वहाँ के मजदूरों की छवियों के थ्रू उनकी कल्पना और उनकी मजबूरी लाते हो, तो इस ताल्लुकात का खुलासा हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या आपको लगता है, अगर मैं इस तरह से पूछूं सवाल, कि ये जो एविडेंस वाली हमने बात की, ये जो हमने पहले इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया आपके काम का, वो क्या लागू होती है? हाँ, मतलब कई बार एविडेंस वाला आप किस तरह से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एविडेंस तो कई सारे मिल सकते हैं और मिलते रहते हैं, कई कई ज़्यादा। ये तो मेजर रिसोर्सेस है, कोल हो गया, कॉपर हो गया, बट उसके साथ-साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, जो कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते उसके डिपॉज़िट्स कितने सारे कितनी कंट्रीज़ में हैं। जैसे चाइना में 93% आई थिंक वो डिपॉज़िट्स हैं। तो आई थिंक ये जो एविडेंस है उसका मैं मेरे काम के में अगर देखा जाए तो मैं एक अलग तरह से यूज़ करता हूँ आई थिंक। तो ह्यूमन बॉडीज़ जो है या फिर मशीन्स के साथ मेरा कई ज़्यादा मेल-जोल मैं करके ये प्रेज़ेंट करता हूँ और साथ ही साथ मैं लेबर के साथ एंगेज करता हूँ। और उसके साथ-साथ अभी जिस तरह से देख रहा हूँ कि वो मेमोरीज़ जो हैं, क्या होती है, जो एविडेंस निकलते हैं, जो प्रीवियस या पास्ट के, जैसे अभी बोट का भी बताया, हम धागे जोड़ते हैं, मिलाते रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जो एक्सकैवेट करने से ज़्यादा जो अपर लेवल पे, सरफेस लेवल पे जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो लाइफ़ है, जो एक कल्चर है, वो भी तो उसके साथ-साथ एक्सकैवेट अलग तरह से हो रहा है। मतलब कल्चर और ट्रेडिशंस कई ज़्यादा मतलब मर्ज हो जा रहे हैं या फिर खत्म हो जा रहे हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को आई थिंक ज़्यादा नोटिस कर पा रहा हूँ अभी और उन सब चीज़ों को ज़्यादा मतलब प्रेज़ेंट भी कर पा रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो कई सारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो फार्मिंग के हैं या फिर टूल्स उनका जो रिलेशन रहा है,
तो कई सारी चीज़ें ऐसे एक्सकैवेशंस में भी मिलती हैं। तो मुझे एक मेरे पास एक छोटा-सा एक ये है आई थिंक 1984 का एक ऑब्जेक्ट है। वो टिफ़िन बॉक्स है हाँ, टिफ़िन बॉक्स है उस टाइम पीरियड का। तो ब्राज़ील में मुझे मिला था वो। वो मेटल का ही है, आयरन का है बट द कोटेड पाउडर कोटेड जो टिफ़िन रहता है उस टाइम का वो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। बट मैं वो सोचता हूँ हमेशा कि इसका ऑफ कोर्स देयर आर मेमोरीज़, देयर आर एविडेंसेस जैसे म्यूज़ियम्स में भी रखी जाती है। जैसे माइनिंग म्यूज़ियम्स का अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए यहाँ पे, तो कई सारे माइनिंग म्यूज़ियम्स में मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। वहाँ के कल्चर, वहाँ का किस तरह का था या फिर रहा होगा और उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके गेम्स, बच्चों के गेम्स लोगों के गेम्स और ट्रेडिशन अलग-अलग चीज़ें बनाने की, पूरा लाइफ़स्टाइल कई-कई जगह पे देखा है मैंने। तो वो मैं हमेशा अपर ल मतलब बिलो द सरफेस एंड अंडर द सरफेस इनका आई थिंक मेरे काम में हमेशा से वो डिस्कोर्स रहा है। मैं वो एंगेज करने की या फिर जोड़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि उनका क्या रिलेशन हो सकता है पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर का। क्योंकि माइनिंग में क्या होता है कि आप बिफोर द माइनिंग, ड्यूरिंग द माइनिंग, आफ्टर द माइनिंग ये 3 अलग-अलग मुझे लगता है कि एक अलग तरह के टाइम पीरियड ही होते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द माइनिंग आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ रही होगी पहले, जब एक्सकैवेट होता है सब कुछ। तो वो ट्रांज़िशन आई थिंक मैं हमेशा से वो नोटिस करता हूँ। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपने समय की भी बात की उस तरीके से, क्योंकि मैं वही सोच रही थी एक्चुअली। अगर देखा जाए तो इस केस में हम कोयले की बात करते हैं तो कार्बन या कोई भी भौतिक एलिमेंट की क्या लाइफ होती है, और हम अपने इंसानी टाइम स्केल पे उसको शायद समझ भी नहीं सकते हैं, ये तो पक्की बात है। अगर हम उसी पदार्थ को एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो समझ में थोड़ा आने लगता है, क्योंकि इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इन पदार्थों का जो इतिहास है वो धरती के इतिहास में गढ़ा हुआ है ना। तो हम अगर देखें तो टेम्पोरैलिटी या समय का जो अनुभव है ये कितना अजीब हो सकता है इन मटेरियल्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन या सामना करने पर। हम अपने जीवन के पैमाने पे, इंसानी जीवन के पैमाने पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इतिहास, याददाश्त, मेमोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पैमाने को दूरबीन से थोड़ा देख के ज़ूम आउट करें और एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे गौर करें, तो हम करोड़ों साल की धरती की मेमोरी जो है, उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो वाक़ई जो एक पैरेलल, एक समांतर समझ में आने लगता है इन अलग-अलग समय के अ, प्रणालियों के बीच। क्योंकि कहीं न कहीं ये कोल या ऑयल, ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स हैं, ये भी तो धरती की यादें हैं ना। और हमारी यादें शायद एक स्पीसीज़ लेवल पे अगर हम बात करें, एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पे, ना केवल एक हिस्टोरिकल मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट से, तो हमारी जो एक पैरेलल एग्जिस्टेंस है धरती के साथ, जो एक अस्तित्व है धरती से जुड़ा हुआ, वो थोड़ा और साफ नज़र आने लगता है। हम स्ट्रैटिफाइड, लेयर्ड तरीके से समय को देखने लगते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। हाँ, हाँ। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। आई थिंक उस तरह से मुझे आयरन के बारे में ज़्यादा लगता है कि हमेशा से सोचता हूँ मैं आयरन माइनिंग और आयरन का जो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वो धरती के मिनरल से बनता है। उस आयरन से मैग्नेट भी बनता है और उसके बाद उसका जब जो जंग लगता है, क्योंकि एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है कि फिर से धरती में घुल जाता है वो। हाँ, तो वो एक ही मीडियम या फिर मिनरल एलिमेंट लगता है मुझे जो उस तरह से उसका ट्रांज़िशन ऑफ लाइफ नोट कर सकते हैं। आपके काम के संदर्भ में स्पेशली, और आपने जो अभी बात की वेस्टर्न कोलफील्ड्स के बारे में, मैं पढ़ रही थी एक निबंध, जियोग्राफर कैथरीन यूसुफ हैं उनका। पढ़ के मैं सुनाती हूँ आपको एक भाग। As extractive predation involves the transfer of energy, it is the means by which racist, hetero-reproductive violence is maintained, governed, and regulated. Geology does not merely map the earth, it changes it.
The mine is emblematic of that exchange and the conditions of those relations as hierarchical. It is a subterranean spatiality that is always under pressure from the weight of the division of surface and underground states. Yet, the underground is also the possibility and spatial autonomy of opacity in plain sight. It is somewhere to dig in and plot. काफ़ी सुंदर है। तो कैथरीन यूसुफ कह रही हैं कि उत्खनन या राइट। निष्कर्षण यानी हाँ, एक्सट्रैक्शन हाँ। पर्यावरण और समाज के लिए हिंसक है, क्योंकि इससे पूंजीपतियों और उद्योगपतियों जो ये एक्सट्रैक्शन मुनाफे के लिए करवाते हैं, उनका राज्य, उनका वर्चस्व बना रहता है। लेकिन खान की खासियत ये भी है कि वो जमीन के नीचे गदर का गढ़ बनने की संभावना रखती है। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने ये जो डायलेक्टिक है, ये जो पद्धति है, उसको इस तरह समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये सच है, जैसे आपने कहा ओपन कास्ट माइनिंग, जो कि हाँ, खुले हुए खान की माइनिंग के बारे में बात की, और करते हैं आप अपने काम में। एक तरीके से तो वो है, एक तरीके से तो वो है ही इस प्रशासन या कोई भी प्रशासन जो इससे पहले रही है, वो ज़मीन पे जिस तरीके से अपना वर्चस्व जमाती है और जो वहाँ रहने वाले लोग, जानवर, पेड़ पौधे, जो भी इकोसिस्टम है, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको मार्जिनलाइज करके एक्सक्लूड कर देती है कोई भी डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की क्षमता को लेकर। तो पूरी तरीके से तोड़ना होता है ना लोगों के विल को, उनकी शक्ति को। लेकिन वही लोग, अब जैसे आपके सप्तरंग के जो साथी हैं या आपके गांव में जितने भी लोग हैं जो विद्रोह में शरीक हैं, वो कहीं ना कहीं एक उदाहरण है, मिसाल है। आप लोग इसको चैलेंज कर पा रहे हैं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं जमीन से उस तरीके से जो कि स्टेट कभी भी नहीं जुड़ पाएगा। तो ये प्लॉट करने वाली बात, साजिश करने वाली बात, उन्होंने बहुत, जो यूसुफ हैं, उन्होंने एक बहुत सबवर्सिव, क्रांतिकारी किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन तख्त जो है वो तो नीचे से ही पलटे जाएंगे ना। ये थोड़ी फीलिंग आती है ये पढ़ के। और कहीं ना कहीं आप जो आर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब वो उतनी लिटिल हाँ, तरीके से होना हो, हाँ, कंसेप्चुअली तो वो कीड़ा आप डाल ही रहे हैं ना लोगों के जहन में। तो मुझे लगा मैं आपका रिस्पॉन्स हाँ, 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 सुनूं राइट। इस एक्सट्रैक्ट पे। आई थिंक वो वही इम्पोर्टेंट होता है ना, जिस तरह से हम चीज़ों को मतलब पलट देने की जब एक ये रखते हैं, हिम्मत रखते हैं या फिर कोशिश करते हैं, तो वो तभी चीज़ें बदल पाती हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा टफ है और आपने जो बोला है कि स्टेट का जो ज़मीन तो कभी होता नहीं है, वो ज़िक्र उनके पेपर्स पे होते हैं बट स्टेट हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है क्योंकि अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो जो भी मैनेजर्स होते हैं या फिर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं जो भी पावर पे जो लोग होते हैं वहां पे हर 3-4 साल में बदल जाते हैं। तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहां पे किस तरह का एक्सकैवेशन हो रहा है या फिर किस तरह के लोगों की परेशानी हो रही है। क्योंकि आप चीज़ें ऐसे ही इमीडिएटली इम्प्लीकेट कर रहे हैं और आप बदल रहे हैं हर साल। तो उन उस तरह के बाकी जो लोग हैं, अभी अगर भारत के दूसरे हिस्से की बात की जाए, झारखंड की या फिर छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, जहाँ-जहाँ पे भी मेजरली कोल माइनिंग्स या फिर कॉपर माइनिंग्स है, तो वहाँ का तो हालत ही बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो उस तरह के जो चेंजेस है, अगर कितना भी स्ट्रगल, ये भी सच है कि आप स्ट्रगल, ये इस तरह का स्ट्रगल है जहाँ पे इमीडिएट सक्सेस या फिर इमीडिएट चेंजेस कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें स्ट्रगल है बट वो रेजिस्टेंस आई थिंक वो उतना ही इम्पोर्टेंट है रखना या बात करना। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये सारी चीज़ें लोगों की आदत बन जाएगी। हम्म। वो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ वाला लगता है कि लोग यही समझना चालू करते हैं कि ये ऐसा ही है। हम्म। हम्म। जैसे मेरे गाँव में अगर मैं देखूँ तो कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उसके उनके राइट्स क्या हैं। कई सारी चीज़ें हम्म। वो जैसे रास्ते पे डस्ट होना, ये भी और या हम्म। फिर उनके क्रॉप पे जो डस्ट आता है फार्मर्स के, या फिर उनके रिहैब जो होती है, मतलब उनको जब डिस्प्लेस किया जाता है एक गाँव से दूसरे हम्म। गाँव में, तो हम्म। उनके जो राइट्स है वो क्या होते हैं। तो ये कई बार आदत बन जाती है हमारी झुकने की। तो वो झुकना नहीं है, इसीलिए है आई थिंक मेरे काम में मैं हमेशा वो चीज़ स्ट्रांगली रखना चाहता हूँ कि देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस टू द पावर। बिल्कुल, या बिल्कुल। जैसे
आपने कहा बिल्कुल झुकना तो बिल्कुल नहीं है और हाँ। साजिश करनी है इन सब के खिलाफ। लेकिन आपने जो ये बातें बोली, एक सामूहिकता की बात मुझे ऐसा लगा बार-बार आपके काम में भी आती है। चाहे वो मुट्ठी हो सॉलिडैरिटी की अ, या उस प्रकार के चिन्ह आपके काम में हैं। और ऑब्वियसली आपका जो हमेशा से ही कंसेप्चुअल सबस्ट्रेटम रहा है, जिस पे आपने अपना आर्ट माउंट किया है, अपनी प्रैक्टिस माउंट की है, वो एक सॉलिडैरिटी के लॉजिक से आता है, एकाग्रता के लॉजिक से आता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो कलेक्टिविटी की बात है, या आपके काम में या आप अपने गाँव में भी हमने बात की सप्तरंग कलेक्टिव के साथ जुड़े हैं आप, और वो भी शामिल हैं आपकी एग्ज़िबिशन्स में। और चंद्रपुर में आपने जो प्रोग्राम्स किए हैं, जो आप नुमाइश करते हैं, जो आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ अपने गाँव के लोगों के लिए प्रोग्राम्स, या उनसे बात करते हैं, तो सामूहिकता जो है ये, वो राजनैतिक तो है ही, सामाजिक तो है ही, पर मुझे लगता है कि ये आपके काम की रूप रचना जो एस्थेटिक्स है, उसके संदर्भ में भी समझा जा सकता है इसे। कि आप एक किस्म की कलेक्टिविटी ग्राउंड पे जीते हैं, और वही एथिक, वही नैतिकता आपके काम में भी आती है। चाहे डायरेक्टली या बहुत लिटरली नहीं भी हो, लेकिन वो दिखती है। एक तो मुझे लगा कि आपका जो आपके जो क्लार्क हाउस वाले साल है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। अ, हुँ, हुँ। यहाँ पे एक कम्युनिटी पे बार-बार आते हैं ना आप वापस। एक दोस्ती में बार-बार आते हैं, और वहाँ पे आपको जिस किस्म का सपोर्ट मिलता है, सभी लोगों को म्यूचुअली, आप देते भी हैं, लेते भी हैं। जो आदान-प्रदान होता है, वो बहुत यूनिक होता है। जो एक इंटिमेसी या नज़दीकी है, आप 4 लोगों के सामने उस तरीके से वल्नरेबल नहीं हो सकते हैं, है ना? क्लाक हाउस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा हमारा पिछले मतलब 2011 मेरा एंगेजमेंट 2011 से चालू हुआ था, 2017 तक एंगेजमेंट रहा है मेरा। तो उसमें इनफैक्ट हम पहली बार वहीं मिले। वही मिले थे एग्ज़ैक्टली। हाँ, अपने श्रोताओं को बता दूँ कि हाँ, प्रभाकर और मैं सबसे पहली बार हाँ, अंधेरे में मिले थे हाँ। उनके शो में। तो क्लाक हाउस में जो एंगेजमेंट चालू हुआ मतलब इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ तो मुझे वो पता नहीं था कि कलेक्टिवली किस तरह से मुझे इंटरेस्ट हमेशा से रहा है बट पता नहीं था किस तरह से काम हो सकता है या फिर काम किया जा सकता है और ये कलेक्टिव मतलब क्या है? मतलब कलेक्टिव ये वर्ड है तो इंग्लिश में हुँ, हम मेरा कुछ उतना ये नहीं था वो शुरू में इंग्लिश में बात करना बट कई सारी चीज़ें लैंग्वेज से लेके आप जो एग्ज़िबिशन मेकिंग से लेके क्यूरेशन से लेके आप सिंपल शेयरिंग मतलब सिंपल क्योंकि हम सब अलग-अलग आर्ट स्कूल से आए थे। निखिल और सचिन जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से थे। योगेश, अमोल, पूनम ये रचना संसद मुंबई से थे। मैं रूपाली बड़ौदा से अपना मास्टर्स फिनिश करके आए थे मुंबई में। और तो उस तरह से एक अलग-अलग स्कूल का तो एक्सपीरियंस था मतलब अलग-अलग जगह पे पढ़ने का। साथ ही साथ कुछ-कुछ मतलब एक यंग एनर्जी का भी एक माहौल क्रिएट हुआ था वहाँ पे। तो 2011 में सब नए थे, नए एंगेजमेंट वो बातें चल रही है, ऐसा चल रहा है, किसी को कुछ काम नहीं है उतना ज़्यादा बट करना है कुछ मतलब कुछ तो चेंज करना है। जैसे फिर क्लाक हाउस में जिस तरह के एग्ज़िबिशन्स होते थे, वो भी काफ़ी अनकन्वेंशनल होते थे। क्लाक हाउस एक तरह का फाउंडेशन रहा है हमारे लिए। हुँ। तो आई थिंक वहाँ से कई सारी मेमोरीज़ है, कई सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी वहाँ से और उसके साथ-साथ मतलब चीज़ें तो सीखी है बट मज़े भी बहुत किए हैं। वो जो मस्ती भी होती है, हाँ, उसका हाँ। एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, एक आर्टिस्ट की लाइफ़ में, जो आप शेयर्ड सब आर्टिस्ट लोग जब मस्ती करते हैं। राइट, राइट। कई सारे प्लान्स किए जाते हैं और उसके साथ-साथ और वो इनिशिएटिव लेना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही रहता था कि क्लास में भी जैसे खैरागढ़ में जब हम पढ़ते थे तो कोई भी चीज़ का पहला इनिशिएटिव लेना हम चुनते थे कि हाँ, हमें करना है। जैसे कि एक सिंपल चीज़ बताई जाए तो जैसे हमें एक मॉर्निंग 10 से 5 बजे तक या 4 बजे तक का टाइम मिलता था काम करने का। बट हम लोग 4th ईयर तक आते तक एक ऐसा माहौल बना दिया था हमने कि मैं और मेरे दोस्तों ने कि चाबी डिपार्टमेंट का हमारे पास ही रहता था। तो सुबह 4 या 5 बजे से जाने से लेकर रात 9 बजे तक काम करने का ऐसा एक माहौल बना दिया था हमने। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें काफ़ी मिसिंग होती है कई बार। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था ताकि हर स्टूडेंट या फिर हर यंग आर्टिस्ट वो क्लाक हाउस में आए।
या फिर आके बैठे कुछ ना करे। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ बैठे रहते थे, क्योंकि पैसे भी नहीं रहते थे, पैसे भी नहीं थे उस टाइम कि कोई रेंट पे घर लिया जाए, या फिर हम्म, रेंट पे कुछ जगह ली जाए, स्टूडियो ली जाए कि वहां पे जाके काम करे। उस तरह एक एक शुरू का माहौल ऐसा ही रहा हमारा कि अ, हमने कई सारे दिन, महीने बोल सकते हैं कि क्लॉक हाउस में ही निकाले। वही सोते थे, वही खाना पकाते थे। मुझे याद है वो, मतलब मैं भी ऑब्वियसली कई बार वहाँ आती थी। आई वाज़ आल्सो वन ऑफ दोज़ रैंडम यंग पीपल जो घूमते-फिरते आ ही हाँ, जाते हाँ, थे। हाँ। आई थिंक ये सच है क्लार्क हाउस के बारे में, दैट इट वाज़ अ नोड। आई थिंक या एक बहुत अहम हिस्सा था वो अर्ली 2010s के बॉम्बे आर्ट सीन का, एंड इट हैड दैट लिव्ड इन फील। इनफैक्ट आई रिमेंबर थिंकिंग अबाउट हाँ, इट वंस कि बड़ी कूल हाँ, जगह है यार, सब यहीं हैंग आउट करते हैं, हाँ। सोते हैं, मस्त है। um, it was also definitely a हुँ, class हुँ, thing, हुँ, a हुँ। migrant thing, यानी कि बड़े शहरों हाँ, के बाहर से अलग अलग तबकों हाँ, के हाँ। से आने वाले लोगों के लिए वो ठहरने की एक जगह थी। क्योंकि सो हुँ, मेनी हुँ, ऑफ हुँ। अस जो कि शहर से नहीं, महानगर से नहीं है, हैव अ वेरी डिफरेंट हाँ, रिलेशनशिप हाँ। उन स्पेसेस के साथ देन वो लोग जिन जो वहीं से हैं, जिनका घर वहीं है। अ, वो जो एक अच्छी वाली डेस्परेशन भी होती है ना, ये कि यहाँ टिकना हाँ, है यार हाँ। किसी भी नहीं, तरीके वो में। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वो जो टिकना जो है ना, आपने जो बोला अभी कि अदरवाइज़ आई थिंक क्लार्कोस का अगर प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता उस टाइम पे, हम जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि हम आज तक, मतलब ये इस प्लेटफ़ॉर्म तक या फिर इस हद तक पहुँच ही नहीं पाते कभी। वो जो माइग्रेंट मैक्सिमम लोग जो क्लार्क हाउस में थे, मैक्सिमम वो बाहर से ही थे, बाहर के आर्टिस्ट थे। हम्म, सबसे पहले अगर हमारे ग्रुप का अगर देखा जाए, तो सबका एक ही मकसद था शुरू में कि सर्वाइव करना है। कैसे भी करके, बट आर्ट करना ही है, और आर्ट करके सर्वाइव करना है। तो कई सारे हमने कमीशन वर्क्स भी करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि सेल रखा जाता था, तो yeah. उसमें जिसका भी किसी का भी काम या फिर सेल हो रहा है या कुछ हो रहा है, छोटे-छोटे ड्राइंग्स कभी-कभी वो सेल होते थे, तो वो एक एक तरह का एक ये सपोर्ट हो जाता था बाकी सब आर्टिस्ट के लिए। तो आज Yeah. मेरा जा रहा है ना, हाँ ठीक है, तो कल कल से 7 दिन का खाना मेरी तरफ से, तो ऐसा तो इस तरह का एक माहौल था। Right, right. कई बार हमारे आर्टवर्क्स सूटकेस में ट्रैवल करते थे। सुमेश और दाशा अगर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो वो अपना एग्ज़िबिशन्स सूटकेस में ट्रैवल होता था। तो Hmm. कलेक्टिवली रहने का हमें अंदाज़ा आ गया था कि कैसे किस तरह से काम हो सकता है। और 2012 में हमने एक कलेक्टिवली एक एग्ज़िबिशन किया था, शून्य का। तो शून्य उसका नाम भी Hmm. दिया था हमारे ग्रुप को, एक शून्य कलेक्टिव करके। तो उस तरह से वो वहाँ पे एंगेजमेंट हुआ, और उसके बाद सप्तरंग का हुआ, और उसके बाद अलग-अलग और जगहों Hmm. से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मेरा जो एंगेजमेंट रहा है इस तरह का, तो मुझे वो ज़्यादा प्रोवोकेटिव लगा, ज़्यादा इंस्पायरिंग भी लगा, और क्योंकि अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ आप जब मिलके काम कर रहे हैं, एंगेज होके काम कर रहे हैं, तो नई-नई चीज़ें भी सीखते थे। और सारे आर्टिस्ट जो थे, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अलग-अलग डिसिप्लिन से थे। कोई स्कल्पचर में था, तो कोई पेंटिंग में, कोई प्रिंट मेकिंग में, कोई Hmm. फ़िल्म में है, कोई वीडियो में, और कोई फ़ोटोग्राफ़ी में है। तो काकोस का ऑफ़ कोर्स एक Hmm. टाइम पीरियड रहा, और उसके साथ कई सारे लोग जुड़े, कई सारी लाइक स्टूडेंट्स, यंग आर्टिस्ट जुड़े, Hmm. क्यूरेटर्स और राइटर्स, कई सारे लोग जुड़े थे। तो आई थिंक वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बॉम्बे में क्लार्क हाउस का। Hmm. मैं आज जब यहाँ बैठ के आज के डेट में जब सोचता हूँ उस तरह के स्पेस के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज उस तरह का स्पेस काफ़ी मिसिंग मिसिंग होता है, काफ़ी मिसिंग है। डेफिनेटली। वैसे तो इस तरीके की कलेक्टिव प्रैक्टिसेस दुनिया भर में आर्टिस्ट हमेशा से करते आए हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह की इकोनॉमी में हम अब रह रहे हैं, बहुत प्रिकेरियस, गिग बेस्ड, अनिश्चित एकदम। लोग मतलब लिटरली एक-एक जॉब पे जी रहे हैं। उस टाइप का काम एक तर्क बराबर। बन चुका है ना हमारे जीवन का। 10 साल पहले कुछ कम था, आई थिंक 10 साल पहले एक स्वीट स्पॉट था, जब इतना बुरा नहीं था पर अग्रसर था उस मार्ग पे। हाँ, तो हाँ। ये कुछ-कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं कि क्लार्क हाउस जैसी जगह बन पाई और वो लेगेसी ऑफ इनफॉर्मल आर्टिस्ट नेटवर्क्स और स्टूडियोज में भी बैठता है।
कहीं ना कहीं ये जो लोन जीनियस वाली बात रहती है आर्ट की दुनिया में, उसको भी चुनौती देता है ये, क्योंकि हम इंडिविजुअल अकेले आर्टिस्ट की जर्नी को उनके आर्ट स्कूल और उसके बाद की जो नेटवर्क्स और दोस्तियां हैं उसके संदर्भ में अक्सर नहीं समझते हैं। हाँ, सॉलिडारिटी इकोनॉमी, अड्डाबाजी और जो इनफॉर्मल पियर पेडागोजी है, एक दूसरे में लेन देन और सीखने सिखाने का जो सिलसिला है, ये मिश्रण है जो आपने अभी वर्णन दिया, वो एक आर्टिस्ट के लिए, एक यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अहम है। नहीं, ये सही में बहुत मायने रखता है क्योंकि आप जब यंग होते हैं तो आपके पास कोई रास्ता या फिर ऑप्शंस नहीं होते ज़्यादा कि आप कि अलग-अलग चीज़ें उस टाइम पे कर आपको सर्वाइव भी करना है और साथ ही साथ आपका आर्ट भी करना है। तो उस टाइम पे आप एक-दूसरे के सहारे ही रह सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स इट्स आई थिंक ये बहुत बहुत मुश्किल दौर होता है सबसे और उसके साथ ही साथ डिसीज़न मेकिंग भी ऐसा एक टाइम पीरियड होता है आपकी लाइफ़ में कि आप सही चुने आपके लिए, खुद के लिए। तो हाँ। वो भी एक एक इनफॉर्मल जो एक लेवल होता है, डिस्कशन होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ज़रूरी होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं मुझे लगता है कि जो कि जहाँ पे रिज़र्व जो स्पेस होते हैं, जो रिज़र्व्स एटमॉस्फियर होता है, वहाँ पे आप उस तरह से खुल के बातें नहीं कर सकते या फिर उस तरह से एंगेज होके आप चीज़ें नहीं समझ पाते। कई बार ऐसी बातें होती थी क्यों मतलब दूसरे गैलरीज़ में या फिर आप एग्ज़िबिशन्स देखने क्यों नहीं आते? तो कई बार होता है कि उनको एक हेजिटेशन सा फ़ील होता है। हम्म। तो मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये है मतलब कहीं न कहीं एक रिज़र्व स्पेस में आप जब जाते हैं, तो आप एक अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील ज स्पेशली आप जब स्टूडेंट हैं या फिर यंग आर्टिस्ट हैं, आपको कुछ नहीं पता कि किस तरह की चीज़ें होती हैं या फिर हो सकती हैं। तो एक मुझे लगता है कि ये क्लार्क हाउस ने उस टाइम पे वो एटमॉस्फियर क्रिएट करने का या फिर एक काइंड ऑफ अ ब्रिज जो है ना, ब्रिज हम्म। बोल सकते हैं आप जो जोड़ने का कंटेम्परेरी आर्ट के साथ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हम्म। आपको हाँ। अक्सर साउथ अफ्रीकन आर्टिस्ट विलियम केंड्रिज से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि आप दोनों के माध्यम सेम रहे हैं। आपने भी एनिमेशन की शुरुआत में, और आप दोनों कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है कि सबसे पहला शायद कनेक्शन लोग वही बनाते हैं। अ, लेकिन ये तुलना थोड़ी आलसी भी लग सकती है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि मुझे और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा मेल लगता है आपके काम का। जैसे क्रिस ड्रूरी हैं, ब्रिटिश आर्टिस्ट, जिनका एक काम है कार्बन सिंक, वो मुझे काफ़ी आपके काम की याद दिलाई उसने मुझे। और चाइना के शुनजुन हैं, उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी कुछ आपके जैसी है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कोयले का उपयोग कई आर्टिस्ट्स ने इतिहास में किया है। अम, तो कंसेप्चुअल लिंक्स बनाना एक तरीके से चुनौती से खाली नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है, अगर आपके काम को एक ऐतिहासिक संदर्भ में डाला जाए, तो वो लैंड आर्ट की प्रथा है। मैं लैंड आर्टिस्ट रॉबर्ट स्मिथसन के बारे में सोच रही थी। उनके नॉन साइट, साइट, अनसर्टन और आइलैंड ऑफ कोल जो काम है, इस वंशावली को उभार के लाता है मेरे हिसाब से। आपके और उनके बीच का जो कनेक्शन है, आपके पुराने पुराने काम को देख के मुझे काफी उनकी याद आई। एक तरीके से जाहिर भी लगता है, पर मुझे ये कनेक्शंस कम दिखाई देते हैं जब आपके काम के बारे में लिखा जाता है। आपको क्या लगता है, आप किन आर्टिस्ट की प्रणाली में खुद को देखते हैं? चारकोल कई सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, राइट? तो लेकिन हर आर्टिस्ट का यूज़ करने का उसका जो तरीका है और मेथड्स हैं, वो काफ़ी अलग हैं। जैसे आपने विलियम केंट्रिज के बारे में बताया, तो विलियम केंट्रिज इनका जो चारकोल यूज़ करने का जो मेथड है, वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। उन्होंने जिस तरह से जो ओपेरा के लिए जो या फिर प्रोसेशन के लिए उनके जो काम हैं, कई सारे शैडो प्रोजेक्शंस के साथ भी और स्पेशली प्रोजेक्शंस और बुक्स के ऊपर भी उन्होंने कई सारे एनिमेशंस किए हैं। तो उनका माइन करके एक ये भी है स्टॉप मोशन एनिमेशन जहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रांज़िशंस होता है लैंडस्केप का, ह्यूमन फिगर्स का, एक्सप्रेशंस का। तो
ऑफ कोर्स मतलब एक प्रभाव था जब मैं मास्टर्स फाइनल ईयर में ड्राइंग्स को लेके डिसर्टेशन कर रहा था। तो इन आर्टिस्ट का मैंने ज़िक्र किया था विलियम केंट्रिज, डैन प्रोजोस्की, रॉबिन रोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। रॉबिन रोड एक आर्टिस्ट है जो परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क करते हैं लेकिन ड्राइंग के साथ। जैसे नल्ली मलानी इनका भी ज़िक्र किया था। और डैन प्रोजोस्की स्पेशली उनका जो ये ड्राइंग यूज़ करते हैं, वो लाइन ड्राइंग ही करते हैं। बट इतने अलग तरह से उनका प्रोवोकेटिव होता है और ऐसा इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं उनके, कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी इंसिडेंट्स पे। और वो सिंपली लाइन ड्राइंग्स करते हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो उनके और उनके भी लार्ज स्केल वर्क्स हैं काफ़ी। तो इन सारे आर्टिस्ट का मैं ज़िक्र कर रहा था, तो कहीं न कहीं प्रभाव था। मतलब विलियम केंट्रिज, आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के मेरे काम को लोग कंपेयर करते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि मैं कई ज़्यादा और डीपली सोचता हूँ अपने काम के बारे में। जब कोई चीज़ कंपेयर होने लगती है या फिर कोई चीज़ ऐसे बोली, मैं मुझे भी कई लोगों ने बोला एग्ज़िबिशन आपका काम ऐसा है, वैसा। तो उसके बाद मैंने काम करना ही बंद कर दिया। स्टॉप मोशन एनिमेशन ही मतलब बनाया ही नहीं मैंने। मैं सोच रहा थोड़ा हूँ। एक्सट्रीम रिएक्शन प्रभाकर, थोड़ा एक्सट्रीम। हाँ, थोड़ा बहुत इमीडिएट ये नहीं था, बट मैं सोच रहा था क्योंकि मेबी जो मेथड है मैंने जो स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए भी यूज़ किया, वो डिस्ट्रक्टिव मेथड ही है। जैसे पियोत्रो दुमाला करके एक फ़िल्म मेकर हैं, पोलिश फ़िल्म मेकर हैं और आर्टिस्ट, उनका आप एनिमेशन देखिए, वो भी एक अलग तरह का मेथड्स यूज़ करते हैं। तो मैं इन आर्टिस्ट से काफ़ी प्रभावित था कि वो प्लास्टर के ऊपर इंक से कोर-कोर के एनिमेशंस करते हैं। मेरा इमीडिएट बंद करना मतलब ये ऐसा ये नहीं था, बट मैं सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ। स्टॉप मोशन एनिमेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मेथड्स के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कंपैरिज़न के बारे में नहीं सोच रहा हूँ वगैरह। बट आई थिंक कहीं न कहीं आपके ऊपर वो जो आप आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं, उनका प्रभाव रहता ही है। बट आप उसको किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से मोड़ते हैं या फिर आप अपनी क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोसेस में डालते हैं, देखा जाए तो? मेरे दिमाग में एक फ्रेमिंग है कि जो हम एपिसोड में पहले एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म और एविडेंस या उत्खनन पे आधारित पूंजीवाद और उससे होने वाली हानि के सबूत की बात कर रहे थे, उस सब का गहरा ताल्लुक है फांसीवाद से। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, और इससे पहले भी कुछ दौर आए हैं ऐसे जिनमें आर्टिस्ट ने अपने टाइम में और अपने अपने इलाकों में अपनी कला के जरिए अपनी ऐतिहासिक ऐतिहासिक परिस्थितियों का सामना किया है, उसकी आलोचना की है। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं जिनके काम को आप प्रासंगिक समझते हैं, रेलेवेंट समझते हैं, या इन चीजों को कनेक्ट करके सोच रहे हैं क्या अपने काम के बारे में? हाँ, मतलब आई थिंक 1-2 मतलब 2-3 आर्टिस्ट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे लियोन फेरारी हैं जो अर्जेंटीना से हैं। उनका काम मुझे मैंने 2014 में मैंने पहली बार वहाँ पे साओ पाउलो बिएनाले में देखा था। तो उनका काम काफ़ी प्रोवोकेटिव लगा मुझे, मतलब काफ़ी आप क्रिश्चियनिटी को और उसके साथ-साथ जो सिस्टम है, सिस्टम और इन जो रिलिजियस बिलीफ है, वो आपको हिला देने वाला मुझे काम लगा उनका, लियोन फेरेरी का। वो और उनके जिस तरह से मीडियम्स और मेथड्स भी जिन्होंने जो यूज़ किए हैं, काफ़ी मतलब सर्रियल है, बट उनके कई सारे स्कल्पचर्स हैं जो इट माइंड ब्लोइंग है, कंप्लीटली आई थिंक वो ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो उनका मैं काम हमेशा से मतलब एक इंस्पिरेशन नहीं बोलूँगा, बट एक प्रोवोक करता है कई कई कि कुछ तरह से कि ये चीज़ें हम जो है, जो बता सकते हैं या फिर बताना चाहते हैं, तो वो और उसके साथ-साथ जिमी डूरहाम जो आर्टिस्ट हैं, उनका भी जो क्योंकि वो उनका भी कई सारा काम पब्लिक एंगेजमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट बेस्ड है। और साथ ही साथ थिएटर से जुड़े हुए कई सारे उनके वर्क्स भी हैं। तो और फ्रांसिस एलिस जो आर्टिस्ट हैं, उनके भी कई सारे काम मुझे बहुत पसंद हैं। मतलब बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ लगते हैं और ऐसे मस्ती वाले कुछ-कुछ काम हैं उनके, मतलब ऐसे मतलब ये कर दिया। जैसे उनका एक बर्फ वाला
एक परफॉर्मेंस है जहाँ पे वो एक बर्फ के बड़े टुकड़े को धक्का दे रहे हैं। बट उसमें आप एक अलग ही तरह के पोएटिकली लेबर के बारे में बात कर रहे हैं। दैट एंड ऑफ द डे वो जब बर्फ पिघल के जब पानी हो जाता है, तो हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो वो जो मुझे एक पोएटिक ये लगा ना एंगेजमेंट उनके काम में, वो किस तरह से ये करते हैं और साथ ही साथ उनका एक परफॉर्मेंस है जो मैग्नेटिक शूज़ पहन के चल रहे हम्म, हों एक जगह पे और जो शूज़ को कई सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स चिपक रहे हैं और बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। तो और एक रिसेंट जो 2015 में इस्तांबुल बिएनाले में उन्होंने काम किया था, जो मैं फर्स्ट टाइम मैं और रूपाली उनसे मिले थे वहाँ पे। हम आप बहुत खुश फैन थे बॉय कि मोड हम में लोग थे। उनके मिल पाए। हाँ, एकदम, एकदम। और उस टाइम उनका वहाँ पे भी एक बर्ड्स को लेके उन्होंने जी। काम किया था, जो कई सारे स्टूडेंट्स को एंगेज करके उन्होंने एक एक वो प्रोजेक्ट किया था बर्ड्स के साउंड का, उन्होंने व्हिसल्स बनाए थे अलग-अलग बर्ड्स के। बर्ड्स के लिए। अंसलम कीफ़र हैं, इनका काम मुझे काफ़ी प्रभावित किया मतलब अभी रिसेंटली मतलब 2018 में मैंने उनका काम देखा था इटली में, मिलान में। उनका स्केल वो जो इफ़ेमेरल वॉल ड्राइंग्स बन रहे थे, वर्क्स हो रहा था बट एक अटैचमेंट डिटैचमेंट का भी प्रोसेस था और उसके साथ-साथ ऐसा एक फीलिंग आता था कि अरे काम तो है ही नहीं अभी। कोई भी पूछता था काम है क्या? अरे दिखाओ क्या दिखाऊँ अभी? तो उनका काम देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इफ मतलब अगर हम्म, फ्यूचर में अगर किसी को मेरा काम देखना है या फिर मुझे खुद को अगर काम वो देखना है तो मैं नहीं देख पाऊँगा। तो सो आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग जो आपने बताया भी अपनी जर्नी के बारे में। फाइनल क्वेश्चन, आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आप चंद्रपुर में और कुछ ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं कुछ बड़े पैमाने पे, या आप कुछ वहाँ पे सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, मतलब ये प्लान तो कई सालों से है कि वहाँ पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं या फिर एक सेंटर बोल सकते हैं जहाँ पे हम्म, इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाए जैसे माइनिंग के बारे में। जैसे हम्म, मेरे पास कई सारी किताबें भी हैं या फिर फ़ोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियोज़ हम्म, का, वॉइस रिकॉर्डिंग का। तो मेरा एक प्लान था कि वहाँ पे एक ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन हो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ जिसके माइनिंग के बारे में और साथ ही साथ मेरे कई सारे कनेक्शंस हैं अलग-अलग जगह पे लोगों से। जी, दुनिया जैसे भर कि में। हाँ, दुनिया भर में अलग-अलग जगह पे। तो किसी न किसी तरह से मैं एक पता नहीं कब किसको कौन-सी जगह, कौन-सी चीज़ प्रोवोक करे और इंस्पायर करे। और साथ ही साथ ये जो है जो लैंड रिस्टोरेशन का जो बात है, हम्म, क्योंकि वो बात किया लोकल लेवल पे मैंने, जो हमारे एक मेंबर हैं सप्तरंग ग्रुप के हम्म, मधुकर जी डांगे, उनका कहना है कि वो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। मतलब उसको एक अलग तरह से करके छोड़ नहीं सकते मतलब हमें पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ सकती है वो वहाँ की। हम्म, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं इस बार, तो मैं एक प्रपोज़ल क्रिएट करने वाला हूँ फ्यूचर के लिए कि किस तरह से वो ये होगा और किस तरह से लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब या फिर लाइक कुछ हम्म, एक्स्ट्रा सर्विस मिल सकती है वहाँ पे और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रहेगा। तो ये बड़े पैमाने पे है और तीसरी चीज़ जो है मैं हमेशा से चाहता हूँ कि वहाँ जब भी जाता हूँ तो एग्ज़िबिशन या फिर कुछ प्रोग्राम हो हम्म। या फिर मैं अपने काम प्रोजेक्ट करूँ। नहीं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और इन्हें तो समय लगेगा। जो हम पहले बात कर रहे थे टाइम की, इसका ये तो सरकारी टाइम स्केल तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी अलग है। आप लोग सब साथ में ऐसे संगठित रूप से कर रहे हैं ये, तो डेफ़िनिटली सकारात्मक रह सकते हैं आई थिंक। थैंक यू सो मच प्रभाकर, आपने इतना समय दिया, इतने विस्तार में अपनी प्रैक्टिस के बारे में भी बात की और कई चीज़ों के बारे में बात की। थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ योर वर्क। आई एम श्योर आप कुछ नया लेकर आएँगे इस सब के बाद। या मैं कोशिश करूँगा और थैंक यू सो मच मतलब आपके साथ बात करके काफ़ी मज़ा आया मुझे मतलब कई सारी चीज़ें जो मैंने शायद बताई नहीं होगी अभी तक, सब एक्सप्रेस या फिर बताने के लिए, शेयर करने के लिए बड़ा अच्छा लगा। Thank you so much. I'm really glad we could do this. Thank you for tuning in to Artalab with Prabhakar Patspute, in which we talk about his decade-long multivalent practice, its transformations, influences, and evolving concerns, as well as the context of open cast mining in a time of capitalism.
and its representational possibilities within contemporary art. If you enjoyed the podcast, please like and share the episode over social media. For more information and updates, you can follow us on Instagram at art.alap and on Twitter at @RTALAAP.